So hello my dear friends, this is your friend Sijatin Agarwal and welcome to my channel. So in this video we are going to cover what are the various templates for CV preparation, and for you I have basically collected some of the standard points which you can mention in our CV. So these standard points will help you to explain all the work pertaining to your statutory audit, internal audit, investment banking, consultings and all these direct tax and direct tax related profiles. More than that, we have covered some domain specific CVs also. So if you are aspiring for some particular domain, so you can prepare your domain specific CVs also. You can refer this detailed video in which we have covered each and every question, so you can go through this whole video. And most important thing is I have basically given the link of all the content which I have used in this video, like CV templates as well as domain specific CVs, and what are the skills which you can mention, and what are the various points, standard points which you can mention in your CV. So link of the same is given in the description. Please refer to that link, and best of luck. So guys, as you can see on the screen, there are some basic things which we need to do to prepare our CV. टेम्पलेट का सबसे पहले तो जैसे टेम्पलेट जो रहता है बेसिकली अपन क्लाइंट का नेम डिस्क्लोज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, इट डिपेंड्स. So if you want to disclose the client name, then that is a separate template, means that is another column of the showing the client name. If you don't want to show that, then there's no requirement as such. So how does it matter? कि should we show client name or shouldn't? ठीक है, it depends. Like some of the big four specifically denies to mention the client name in your CV to maintain the confidentiality or whatever requirements, like KPMGs and some big fours are there which specifically prohibits you to mention the client names in the CV. Fine. So if your firm or any other restriction is not prohibiting you to disclose the client name, then it is advisable to show the client name, if, specifically for the clients who are listed and who are having good turnovers, public companies. So those client name we should show. It will create a positive impact because we have gone through such big clients during our articleship. So it will add some value to our CV. So this is how. Firstly, we'll disclose our name. So you can change your name here. Then you are a chartered accountant. Then BCom if you have done, or BAMCom if you have done, then we can disclose that. Then the location, mobile number, LinkedIn, and mail ID. So this is the basically heading section which we disclose our basic details. What degree we possess, what location we, basically what's our native location, mail ID, mobile number, and LinkedIn. Okay. Now the question is that how to insert this LinkedIn here. LinkedIn का लिंक कैसे इंसर्ट करेंगे? तो आई थिंक यू आर बेट अवेयर ऑफ दैट कि सबसे पहले विल गो टू आवर लिंक्डइन आईडी. तो जैसे कि मैं यहाँ पे मेरी लिंक्डइन को ओपन करता हूँ. ठीक है, लिंक्डइन पे मैं गया. अब लिंक्डइन पे हियर देयर इज अ सेक्शन कि दिस इज द माय प्रोफाइल. सो हियर आई कैन शेयर माय प्रोफाइल. हाउ? शेयर प्रोफाइल है. So I'll copy the link to share this profile. Now I'll go to Word. Here I'll press Control K. Control K will open a hyperlink section. ठीक है, तो hyperlink में क्या होगा? We'll paste this link, and there are two options. I can't show it here on my tab, but the thing is there are two options. What are those two options? So this is suppose the hyperlink tab. Control K. So this is the link which you need to copy, and this is the text which you need to display. ठीक है, आप लिंक अपना यहाँ पे कॉपी करेंगे, और जो आप वहां पे दिखाना चाहते हैं, आप सपोज दिखाना चाहते हैं यहाँ पे कि दिस इज माय लिंक्डइन ओनली, या लिंक्डइन कुणाल, दिस यू नीड टू शो दैट. तो ये सब यहाँ पे आप नीचे लिख देंगे, ओके कर देंगे. सो योर लिंक्डइन लिंक विल बी कॉपीड इन दिस वर्ड फॉर्मेट ऑफ योर सीवी. ठीक, तो लिंक्डइन इस तरीके से आपको इंसर्ट करना है. फिर उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके उसके क्लिक करके देखेंगे कि वेदर इट इज डायरेक्टिंग टू द करेक्ट लिंक और नॉट. ठीक है, वो लिंक सही डायरेक्शन में जा रहा है नहीं जा रहा, आपके लिंक्डइन प्रोफाइल पे जा रहा है या नहीं, दैट वी विल डू. इसके बाद आते हैं लिंक्डइन, ये जो अपन ने हेडिंग सेक्शन अपन ने कवर किया. अब हेडिंग सेक्शन के बाद आता है अपना प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स. बिकॉज वी आर ए फ्रेशर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो फ्रेशर के केस में क्या होता है कि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मैटर्स अ लॉट. इफ यू आर लाइक because this is the basic things. Yesterday we discussed there are three things which is important from the interview perspective, from the perspective of interviewer, which they
like looks upon us our profile. First is academic, second is your experience, third is your communication or soft skills. So this academics here matters a lot. So we'll disclose it like this. क्वालिफिकेशन डिस्क्लोज करने के मेथड्स हैं कि सबसे पहले आप सीए फाइनल दिखाएंगे, इंटरमीडिएट दिखाएंगे, फाउंडेशन दिखाएंगे। फिर अगर आपने कोई ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, वो दिखाएंगे। देन ट्वेल्थ एंड टेंथ। अभी द थिंग इज सर, अटेम्प्ट दिखाएं या नहीं दिखाएं, द थिंग इज दैट। तो फाइन इनफ कि अगर आपने जैसे गैप आप ईयर वाइज कैसे प्लॉट करते हैं, दिस इज नवंबर 21, ठीक है, दिस इज नवंबर 24। सो आई क्लियर्ड लाइक इन फर्स्ट अटेम्प्ट। सपोज अगर मेरा यहाँ पे नवंबर 25 होता तो क्या करते? इन दैट सिनेरियो मैं क्या करता कि जैसे मेरा ग्रुप वाइज डिस्कशन पे अगर अपन जाते हैं कि मेरा फर्स्ट ग्रुप क्लियर हो जाता है नवंबर 24 में, नवंबर 20, फिर उसके बाद मई 25 में सपोज मैंने एक दूसरा ग्रुप क्लियर नहीं कर पाया, और फिर मैंने दूसरा ग्रुप क्लियर करा सितंबर 25 में। तो इन दैट केस मेरे को सितंबर 25 पे लिखना जमता। हम प्राइमर फेस ही आई शो सितंबर 25 ओनली। अगर वो इंटरव्यू में जाके मेरे से पूछता कि देयर इज अ गैप ऑफ मोर देन 3 इयर्स, तो आपने किस तरीके से क्लियर किया, तो फील्ड आंसर अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो वी कैन शो द लास्ट अटेम्प्ट इन विच वी डिड दैट। Instead of showing the group 1, group 2, we can show it like this. The last time in which we have cleared this last attempt of CA final, we have to show that here. Fine. उसके बाद कहाँ से क्लियर किया? फ्रॉम वेयर वी हैव क्लियर्ड दिस ICAI and the performance. Performance is cumulative percentage of both of your groups. And in remarks we can mention if we have cleared with a rank or with the first attempt, and if you have secured any exemption. So here instead of exemption we can mention that 60 plus marks. Here we can mention that also, that I have secured 60 plus marks in that subjects. We can mention that also. Fine. वैसे ही same we can do for CA intermediate attempts. So mentioning the attempts same as we have discussed in CA final. In CA foundation same, then BCom and class 12th and 10th. So this is how we can mention the academic qualification. Now, any question from your side to mention this academic qualification details? Sir, I cleared my intermediate group 1 in 2019. Okay. After that, there was COVID, and I cleared my group 2 in 2022. Okay. Got it. Got it. So simply what? In my CV, I have shown as I have cleared my intermediate in 2022. हाँ, I have not mentioned it separately. right. You can mention like that only, that I have cleared my intermediate in November 22. That's fine. It's better to show like that, because if you will prima facie disclose 3 years gap in both of the groups of CA intermediate, then prima facie like it's higher is chance, like the chance of rejection is higher from the face of it. So simply we can mention that, because see, when the intermediate is said to be cleared, when we have cleared both the groups, then only intermediate is declared as cleared. Fine. Yes. But the thing is, in your scenario, it is not the case that you have there is a gap of approximately 3 years in your intermediate and final. In some of the cases, because earlier what ICI used to allow, you can give the group 1 and you can start your articleship. So that was the case, right? So suppose in the attempt, like suppose if you have cleared your CA intermediate group 2 in November 23, and in September 25 you have cleared both of your CA final groups. So in that case, the gap between intermediate and final is only 1.5 years approximately, right? 1.5 to 2 years. So that will basically attract their mind to this time gap. They will specifically ask that this is why this gap and all these things. But here in your scenario, it is a bit clear that suppose you have cleared your foundation at the time, and due to some of the reasons you joined some of your family business, or you're not able to study some of the medical issues or like that. Fine. Because of that reason, you could not study at that time and you could not give the intermediate. So you started again in that year, and you sat for this attempt and fought for that and cleared. Fine.
Is in my CV, I just shared it on our WhatsApp group. Okay. To Just cover that, I had added a business project which I had undertaken during 19 to 2022. just a minute. Like as you have shared, you have this education you have done CA final. CA intermediate 440 2022 you have mentioned. Fine. Okay. So what you have added is article internal tax compliance corporate and business project food venture. Additional experience. ठीक है, got it. This was a business project which was mentioned by you, which says that establish and manage day-to-day operations, handle budgeting, cash flow management, cost optimization, negotiated with the vendors, design pricing strategy, gained hands-on exposure in the financial planning. So, like you have added this project. So, was it real or like a sort of No, addition? it was real. I had undertaken a project. Uh, So that was a sort of like a combined venture of some of your friend with some of your friends, or you alone did that? I did it independently. You Uh, did it independently. Okay. So what After you used to COVID, sell in that business? that was a food outlet. Food We were outlet, basically into catering and the restaurant business. catering and restaurant, fine enough. Okay, this is a good venture which you have mentioned here. So similar to what I quoted that which in that meantime Yes. whatever you have done. So you're clear very well. It's very well mentioning here that clearly plotted down that during this tenure you have explored this venture. This is a very good experience you have gained, and they will definitely ask questions on it. Okay, so this is how we can show our professional academic qualifications. Now, next section is our work experience section. So this education qualifications we have mentioned and work experience. Work experience, suppose if you have done your industrial training, then firstly that should be mentioned. Second is done of your articleship. So in this section, how we can mention that suppose firstly we'll mention some of the assignments which we have done. Then with assignments, like we can mention the client name. If that is suitable, we can mention the client names also. Okay. Then after the client names, whatever the work we have done. So this work we should mention as per like I'll share some of the key points by today itself. So those key points we can mention in the various domains in which we have worked. कि आपने स्टैच्यूटरी ऑडिट में काम करा तो स्टैच्यूटरी ऑडिट के पॉइंट्स लिख दो इंटरनल ऑडिट में काम करा तो उसके पॉइंट्स लिख दो बेसिकली सीबीए में जो वर्क एक्सपीरियंस है वर्क एक्स में बेसिकली तीन चार आप सेक्शन लेके आओ तीन सेक्शन लेके आओ एक ऑडिटिंग लेके आ गए ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस उसमें कुछ इंडेस आप मेंशंस करेंगे बिकॉज देयर इज नो प्लॉटिंग ऑफ एनी ऑफ द इंडेस इंडेस से बेनिफिट क्या रहता है कि देयर आर सम कीवर्ड्स सपोज आजकल क्या होता है कि दिस सीवी एंड रेज्यूम इज बीइंग शॉर्टलिस्टेड बाय सम ऑफ द softwares like ATS. Okay. So these softwares basically reads these CVs and their like companies set some keywords. If they can those ATS can get those keywords, then like it auto shortlists your CV. But if it is not getting those keywords, then the chance is less. So what we need to do is we have to plot down those keywords in our CV. Some of the keywords for statutory audit domain, specifically for that is Indies, your Schedule 3, CARO, your Companies Act, and some of the compliance pertaining to that, your standards on auditing. So if we are doing some statutory audit, so these keywords should be there. Okay. Then suppose if we are doing some for some financial planning and analysis role. So in that scenario, some keywords like ratio analysis, trend analysis, budgeting, forecasting. So all these terminology should be there. If we are doing it for any investment banking related opportunities, then some keywords like financial model, your some of the tabular or these types of technical skills, etc., etc. There are many things. Like what I have done, like we have this.
basically we have the 6 7 templates. In those 6 7 templates we have domain wise templates. So this is a basic template. In those 6 7 CVs what you will get some of the key skills which you can mention in your CV while preparing the domain wise templates. होता क्या है कि that is a general CV. आप लोग एक जनरल सीवी प्रिपेयर करोगे. जनरल सीवी के साथ साथ आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि मैं टैक्स का काम करना चाहता हूँ. आई वांट टू गेट इनटू द टैक्स डोमेन या आई वांट टू गेट इनटू द ऑडिट डोमेन, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डोमेन. तो उसमें अगर आप यू वांट टू गेट योर सीवी शॉर्टलिस्टेड तो कुछ आपको कीवर्ड्स उसमें मेंशन करने पड़ेंगे. बिकॉज मैंने बताया 3 बेसिक रूल. पहला का आपका अकेडमिक्स. अकेडमिक्स सेम है सबका, सीए फाइनल सबने क्लियर करा है. सेकंड इज योर अकेडमिक के साथ साथ कुछ मार्क्स भी मैटर करता है इस केस में कि जो आपका अकेडमिक जो मार्क्स है दैट आल्सो मैटर्स. सेकंड है आपका वर्क एक्स. वर्क एक्स में आपका फर्म नेम आल्सो मैटर्स. देन कम्स योर वर्क व्हाट यू हैव डन. सो वर्क में कुछ की पॉइंट शुड बी देयर. अगर वर्क उससे मैचिंग करता है तो सपोज आई एम hiring a candidate, I'm paying him 15 lakh rupees. So what I want from a company's perspective, I'm not hiring that candidate कि भाई उसको मैं हायर करके कुछ सब कुछ सिखाऊंगा. दैट्स नॉट द बेसिक रीजन. माई बेसिक रीजन इज कि एटलीस्ट ही शुड हैव एन बेसिक आइडिया कि मैं उसको कुछ काम दूं तो ही कैन डू इट. उसके लिए आई विल फाइंड अ पर्सन हु इज मोस्ट एलिवेंट फॉर माई कंपनी. ठीक है, हु कैन गिव द बेटर रिजल्ट इन द लेसर टाइम. तो इसलिए इफ आई कैन गेट दोस की वर्ड्स इन द सीवी तो मेरी शॉर्टलिस्टिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो इसलिए ये कीवर्ड्स अपन उसमें से देख के प्लॉट डाउन कर देंगे कि अलग अलग जो सीवीज है डोमेन स्पेसिफिक सीवीज. तो डोमेन स्पेसिफिक में स्पेशलिटी क्या होता है, अगर आप डायरेक्ट टैक्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप ज्यादा मतलब जैसे 2/3 सेक्शन ऑफ योर सीवी विल बी कवर्ड बाय दिस डायरेक्ट टैक्स रूल्स. अब उसमें लिखेंगे क्या और फिर लिखेंगे तो ठीक है, अगर इंटरव्यू में पूछ लिया तो बोलेंगे क्या, दैट ऑल्सो मैटर्स. तो इसके लिए आपको क्या करना है कि देर आर सम स्टैंडर्ड पॉइंट्स. जो स्टैंडर्ड पॉइंट्स आई विल कवर हियर. सो दीज आर द स्टैंडर्ड पॉइंट्स. सो स्टैंडर्ड पॉइंट्स फॉर स्टैंडर्ड पॉइंट्स आप देख के लिखेंगे कि दिस इज लाइक सपोज फ्रॉम द फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ एफपी रूल. सो दीज आर द स्टैंडर्ड पॉइंट्स कि मैंने ये काम करा. इसको क्वांटिफाई आपको करके लिखना पड़ेगा कुछ कुछ को. या बेसिकली आप अगर स्टैच्यूटरी ऑडिट देख रहे हो तो स्टैच्यूटरी ऑडिट में मैंने एम्फेसिस और मैटर पैराग्राफ पे फोकस करा. फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द रिवाइज्ड शेड्यूल 3. दिस आई चेक्ड. देन आई चेक द वेरीफाइड द अकाउंटिंग रिपोर्टिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंडिया 16. तो these types of things if you mention in your CV तो इससे क्या होगा कि interviewer will also have an idea of India 116 because if he, suppose he is also the financial reporting head तो उसको आइडिया होगा कि 116 की अकाउंटिंग कैसे होती है and he'll ask you questions from it. तो CV में सामने वाले को should get some interest ताकि वो उसमें से questions पूछे. होता क्या है कि अगर उसको CV में से कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, उसको कुछ इंटरेस्टिंग लगता है तो ही आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दैट. बट अगर उसको सीवी में कुछ भी नहीं दिखता क्वेश्चन पूछने के लिए तो ही विल मूव ऑन टू जनरल क्वेश्चन. जनरल क्वेश्चन मतलब जो उसको पता है तो ही विल मूव टू दैट सेक्शन. अगर सीवी से कुछ नहीं दिखता है तो सीवी में इस तरीके से 3 चीजें ध्यान में रखनी है सीवी में. सबसे पहला कि आप है ना कीवर्ड्स पे फोकस करें. दूसरा कुछ क्वेश्चंस सामने वाले को दें अपने सीवी में से. और तीसरा चीज ये है कि उसको क्वांटिफाई करके लिखें, अपनी ऑब्जर्वेशंस लिखें कि मैंने आई डिड दिस. सपोज जैसे क्वांटिफिकेशन मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल से. आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन वेयर आईटीसी वाज नॉट अवेल्ड लीडिंग टू सेविंग ऑफ जीएसटी इनपुट ऑफ दिस lakhs or this crores. So this is the quantification. Identify and reverse the excess booking of liability account amounting to this crore. So we have plotted observation as well as quantified it. So this will show the materiality of the work which we have done. सर इस पे मतलब अगर ये पॉइंट्स डाल रहे हैं तो ऑब्वियसली मतलब वो इस पे क्वेश्चन तो करेंगे ही करेंगे. तो इस पे अपने को फिर इस पे ही आंसर देना रहेगा, बराबर ना? बराबर. बट द थिंग इज दीज आर स्टैंडर्ड पॉइंट्स. सपोज आपको क्या करना है कि ये पॉइंट्स को गो थ्रू करना है. अब गो थ्रू करने के बाद आपने जो आर्टिकलशिप में करा उससे कौन सा पॉइंट इज रिलेटेड, विच पॉइंट इज रिलेटेड टू दैट वर्क. अब उसको दिस इज द मेथड ऑफ राइटिंग ऑफ दैट वर्क डन इन दैट सीवी कि भाई इस मेथड से आप अपने काम को सीवी में लिख सकते हो. दिस इज द स्टैंडर्ड लैंग्वेज. अभी ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज आप खुद भी बना सकते हो कि एज इट इज कॉपी पेस्ट भी नहीं करना. जैसे मान लो आपने अपनी लैंग्वेज कुछ बनाई, उसको आप चैट जीपीटी की हेल्प से भी सॉर्ट कर सकते हो. जैसे मान लो एक ये पर्टिकुलर लैंग्वेज है, ठीक है. अब मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करूंगा. कॉपी करके पूरा मान लो चैट जीपीटी पे लेके आऊंगा. इससे अभी तो कॉपी वर्ड
हाँ ठीक है, कॉपी किया मैं। सर आप वर्ड ही शेयर कर देना, पीडीएफ मत करना, तो वर्ड में ही एडिट कर ठीक लेना। है ठीक है ठीक है, आई शेयर द वर्ड। अब इसको मैं क्या करूंगा कि इसमें यूज फ्रेजल वर्ब्स लिख दूंगा हर सेंटेंस को। तो मैंने इस तरीके से बनाए स्टैंडर्ड पॉइंट्स की, मैंने फ्रेजल वर्ब्स, इसमें मैं फ्रेजल वर्ब्स अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो मैं फ्रेजल वर्ब्स लिख दूंगा। ठीक है, तो ये मैंने फ्रेजल वर्ब्स के लिए यहाँ पे पेस्ट कर दिया ये। अब ये मेरे को इसमें फ्रेजल वर्ब्स जैसे ऑलरेडी यूज्ड है, तो आई फाइनलाइज्ड, देखिए फाइनलाइज्ड financial statements including the cash flow statement, notes to accounts, prepared and reviewed the statutory financial and in compliance with the CARO, drafted and analyzed the cash flow statements। ठीक है, कौन कौन से आप काम में ले सकते हो, या फिर करेक्ट दी लैंग्वेज कर सकते हो आप। तो ये इस तरीके से मैंने पॉइंट्स बनाए हैं कि जो जनरल पॉइंट्स थे उसको चैट जीपीटी पे या फिर एआई टूल पे डाला, कुछ कुछ सेल्फ कुछ उसको चेंजेस किया। तो इस तरीके से आप भी अपने पॉइंट्स को बना सकते हो अगर वो सब पॉइंट्स आपके मेरे इन स्टैंडर्ड पॉइंट्स में कवर नहीं हो रहे तो। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी कैन डू, क्योंकि these things will get your CV shortlisted, will attract the attention, and will make your CV a professional one। कि जनरलाइज लैंग्वेज नहीं है, द सीवी कवर्स है स्पेसिफिक प्रोफेशनल लैंग्वेज, और स्पेसिफिक जो इंटरव्यूअर को चाहिए कि क्या काम करा, क्या फाइंडिंग्स निकाली, कितने अमाउंट की थी, वो उसको मिल जाए। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये एक्सपीरियंस वाला सेक्शन। अब एक्सपीरियंस वाले के बाद आते हैं अपन एक्स्ट्रा करिकुलर्स में। अब एक्स्ट्रा करिकुलर्स में व्हाट वी गाइस नीड टू मेंशन इज, एक्स्ट्रा करिकुलर्स में जैसे मैं आपको बताता हूं कि हाउ इट इज डन। एक्स्ट्रा करिकुलर्स में ये दीज आर 4-5 हेडिंग्स जो आप लिख सकते हैं। जैसे जैसे कि मैंने कुणाल के सीवी में भी देखा था कि कुछ उसने हेडिंग्स लिखी है, तो 4-5 हेडिंग्स है उसमें आप क्वांटी इसको इसमें फर्दर एड ऑन कर सकते हो कि मैंने पब्लिक स्पीकिंग में ये चीजें करी, मैंने एकेडमिक्स के में ये चीजें अचीव करी, टेक्निकल्स में ये चीजें करी, कोर्सेज एंड सर्टिफिकेशंस, हॉबीज। अब इसमें एक सेक्शन में एड ऑन और करवाना चाहूंगा जो यहाँ पे अभी नहीं है। द थिंग इज, आप इसको थोड़ा सा चाहे कम करके यहाँ पे वर्क एक्स के जस्ट पहले एक सेक्शन और ऐड ऑन कर दो, और वो सेक्शन आपका होना चाहिए स्किल्स का। ठीक है, एक स्किल्स का सेक्शन डाल देंगे। ये स्किल्स क्या शो करेगी, क्योंकि आजकल क्या होता है कि जो ये ऑटो शॉर्टलिस्टिंग का कॉन्सेप्ट है, इसमें कीवर्ड्स के साथ साथ स्किल्स ऑल्सो मैटर्स। तो स्किल्स में जब आप एटीएस पे ये स्किल्स अपलोड करेंगे किसी भी सॉफ्टवेयर पे, तो वो स्किल्स यहाँ से ऑटो ले लेगा। अब कॉमन स्किल्स जो है, तो अभी मेरे पास जैसे मैं आपको एक स्किल्स का एक पीडीएफ शेयर कर दूंगा कि जैसे स्किल्स का पीडीएफ आई थिंक आई ऑलरेडी हैव दैट थिंग। सी, ये स्किल्स का है जो मैंने डोमेन वाइज सीरीज आपको दिए ना, तो इस डोमेन वाइज सीरीज जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा इसमें मैंने ये स्किल्स का भी लिखा है। दिस इज द स्किल्स, सो दिस इज फॉर दी डायरेक्ट टेक्स्ट प्रोफाइल। तो अपन एक स्टैट्यूटरी ऑडिट प्रोफाइल का अगर लेते हैं, जस्ट सेकेंड, तो ये अपना आ गया स्टैट्यूटरी ऑडिट प्रोफाइल। ठीक है, तो आप देखो स्टैट्यूटरी ऑडिट प्रोफाइल में, सो ये कब काम में आएगी आपके स्किल्स, जब आप एक जनरल सीवी बना रहे हो तो आप सबका एक एक पॉइंट दो दो पॉइंट डाल देना स्किल्स में। लेकिन अगर आप एक डोमेन स्पेसिफिक सीवी बना रहे हो तो यहाँ से आप स्किल ले लेना। उसमें स्किल क्या लोगे कि स्टैट्यूटरी ऑडिट में कीवर्ड्स आपने उसको स्किल्स में ही दे दिए ताकि उसको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़े। क्योंकि आजकल होता क्या है, जैसे मान लो एक सी सीवी आपका, ये सैंपल सीवी जो अपन ने देख रहे थे, सैंपल सीवी में बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो उसको देखने पड़ेंगे सीवी टेम्पलेट में, कि वो इतनी सारी रामायण पढ़ेगा, इतनी सब चीजें। अब उसको 20 मिनट 30 मिनट मिलते हैं, उसमें इंटरव्यू भी लेगा, इतनी सारी चीजें भी पढ़ेगा, सो क्वाइट हार्ड फॉर हिम। तो इसलिए क्या करते हैं, जितना आप समराइज करोगे तो वो उन चीज पे फोकस करेगा जिसपे उसको, जो आप हाईलाइट करोगे उन चीज पे फोकस करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, एनालाइज को हाईलाइट कर दिया, बोल्ड कर दिया। यहाँ पे मैंने इसको बोल्ड कर दिया कि इंडेक्स ये देखिए, यहाँ पे कारो को बोल्ड कर दिया, कीवर्ड्स को बोल्ड कर दिया, मैंने ऐसे को बोल्ड कर दिया, यहाँ ऐसे को, यहाँ ऐसे को, ये ऑडिट रिपोर्ट वाले सेक्शन हो गए। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे मैंने कुछ नॉर्म्स अगर देखे, एलएफआर बैंक ऑडिट में देखी, या फिर यहाँ पे ये स्टॉक रिपोर्ट देखी डीपी स्टेटमेंट के लिए। फिर मैं इंटरनल ऑडिट पे आया, मैंने जो इंटरनल ऑडिट की प्रोसेस थी, P2PO, O2C, R2R, उन सबको बोल्ड कर दिया। ठीक है, कोई कॉन्टेक्स्ट गो थ्रू करे, उन सबको मैंने बोल्ड कर दिया।
तो इस तरीके से मैंने क्या किया कि उसके अटेंशन को एक स्पेसिफिक पॉइंट पे फोकस करने के लिए उनको बोल्ड कर दिया। तो साथ के साथ ऊपर में अगर स्किल्स भी लिख दूंगा तो ही गेट टू नो कि इसमें ये काम करे हैं तो इससे ये स्किल्स इसने ऑब्टेन करी है, तो दोनों इंटरलिंकिंग कर जाएंगे। तो अभी स्टैट्यूटरी ऑडिट की जो अपन बेसिकली देख रहे थे, तो स्टैट्यूटरी ऑडिट में अपन ने देखा कि ये अपन ने स्किल्स लिखे, स्टैट्यूटरी ऑडिट एश्योरेंस लिख दिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग लिख दिया, ऑडिट प्लानिंग एग्जीक्यूशन डॉक्यूमेंटेशन लिख दिया, और कारो लिख दिया अपन ने, कंपनीज एक्ट सीबी रेगुलेशंस लिख दिया लिस्टेड कंपनी के केस में, एनालिटिकल रिव्यू सब्सटेंटिव टेस्टिंग अपन करते हैं ऑडिट में, एडवांस एक्सेल एसएपी टैली ईआरपी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो ये आपके की स्किल्स इंक्लूडिंग दिस, ये टेक्निकल स्किल्स भी आ गए और साथ साथ जो आपके रेलिवेंट स्किल्स थे फ्रॉम विच इज रिक्वायर्ड फॉर दैट प्रोफाइल वो भी आ गए। तो ये एक ऊपर अलग से आप सेक्शन डाल देना, ठीक है। दैट विल कवर राज कितने पेजर, हाउ मेनी पेजर सीवी शुड बी। फिर उसके बाद ये आपके प्रोफेशनल क्वालिटी जिसे मैंने इसमें यहाँ पे दिखा दिया, तो ये आप डाल देना। फिर उसके बाद लास्ट में जब आप एक्स्ट्रा करिकुलर्स में जाएंगे, एक्स्ट्रा करिकुलर्स एंड अचीवमेंट करके लिख देना डोमेन स्पेसिफिक सीवीज में, उसमें अचीवमेंट्स कुछ जैसे जो डाल सकते हो वो डाल देना और एक्स्ट्रा करिकुलर्स आप डालोगे, ठीक है। तो आपको सीवी किस टाइप से बनाना है, एक जनरल सीवी बनाएंगे। अब सीवी बनाने के लिए आपको क्या करना है, जैसे ये एक मैंने बताया कि सीवी बनाने के लिए एक बेसिकली आपको यहाँ पे बेसिक पॉइंट्स क्या ध्यान में रखने हैं। सो टेम्पलेट सिलेक्शन अपना हो गया। टेम्पलेट के बाद आपको क्या करना है, पेजेस। पेजेस जैसे अभी राज ने भी क्वेश्चन पूछा कि हाउ मेनी पेजर ए सीवी शुड बी। सो आपके लिए एज अ फ्रेशर सीवी शुड बी ए 1 पेजर सीवी। उससे होता क्या है, क्योंकि काफी एटीएस जो होते हैं सॉफ्टवेयर होते हैं दे स्पेसिफिकली आस्क फॉर 1 पेजर सीवी फॉर ए फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो आपको सीवी एक पेज में ही बनाना चाहिए, मोस्ट सुटेबल, और एक पेज में ही बनाना चाहिए। चाहे आप डोमेन स्पेसिफिक सीवीज बना रहे हो या फिर आप जनरल सीवी बना रहे हो, द सीवी शुड बी 1 पेजर ओनली, ठीक है। तो वील प्रिपेयर द 1 पेजर सीवी ओनली। अब उसके बाद 1 पेजर सीवी में सर सर एक सर्टिफिकेशंस में पूछना था, ये जो जीएमसीएस ओरिएंटेशन ये लोग भी डालते हैं, मतलब मैंने हम्म, देखा था एक दो बंदे का वो डाल देते, वो जीएमसीएस ओरिएंटेशन बैच के आईटीटी, वो डालना नेसेसरी नहीं है ना, मतलब वो कोई मुझे पता है कि मतलब वो तो करेगा ये बंदा, तभी तो आया इधर। हाँ हाँ हाँ, दैट इज नॉट रेलिवेंट। हम्म। बट द थिंग इज, अगर जैसे क्या है आपके पास अगर और कुछ नहीं है सपोज इसमें मेंशन करने के लिए, या फिर आपने उसमें सर्टिफिकेशंस में उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड आपकी कोई रैंक आई है, उसी में सपोज जीएमसीएस में फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई रैंक आई है, तो वो डालना चाहिए। बाकी दैट्स अ पार्ट ऑफ योर करिकुलम कि वो सब तो सभी करके आए हैं, आईटीओसी भी करके आए हैं, जीएमसीएस एडवांस आईटीटी भी करके आए हैं। सो दैट्स ए पार्ट ऑफ करिकुलम, ऐसे कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, नॉट एडिंग एनी वैल्यू, ठीक है। अभी फॉन्ट कौन सा रहे, फॉन्ट साइज क्या रहे, तो फॉन्ट बेसिकली टाइम्स न्यू रोमन आप रखो, कैम्ब्रिया भी रख सकते हो। फॉन्ट साइज 11 रखो, अगर कुछ ज्यादा कंटेंट है तो 10 कर सकते हो, 10 से कम नहीं करना है। हेडिंग्स आपकी कैपिटल लेटर्स में रहे। सीवी का नाम कैसे रखेंगे, नाम उसका रीनेम करके आपको रखना है सीवी अंडरस्कोर कुणाल सिन्हा, ठीक है। और रैंक अगर है तो सीवी अंडरस्कोर AIR1, ऐसे जो भी करके फिर, ठीक है, तो वो भी लिख सकते हो। अब उसके बाद एक कुछ टिप्स है कि चैट जीपीटी का यूज करके आप समराइज कर सकते हो पॉइंट्स को, अगर स्टैंडर्ड पॉइंट्स से आप काम में नहीं ले रहे हो तो। फिर उसके बाद सीवी में आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखने हैं ताकि सामने वाला आपसे क्वेश्चंस पूछ सके। इसके साथ साथ एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन जो हम कवर करेंगे, जिसमें लिखेंगे हाउ टू आंसर, टेल मी अबाउट योरसेल्फ और ये सब चीजें, तो वो कैसे आंसर देना है। फिर उसके बाद एक कुछ ऐसे यूनिक स्ट्रेंथ दिखाना चाहो, जैसे राज के सीवी में एक मतलब कुछ यूनिक दिखा कि ही वर्कड ऑन सम प्रोजेक्ट, ठीक है। वैसे ही आप अपन ने भी अगर कुछ भी मतलब एक्स्ट्रा करो, क्योंकि सीवी जैसे मैं लास्ट 1.5 ईयर से मोर देन मैंने 100+ सीवीज पर्सनली गो थ्रू करे, ठीक है। उसमें मैंने क्या देखा कि मोस्टली आप देखेंगे तो 90 सीवीज आर ऑन द सेम लाइन, सब में सेम है, जनरल पॉइंट्स कॉपीड हैं, किसी में क्या है, और मतलब मोस्टली सेम है। अब एक्स्ट्रा इसमें कैसे ऐड ऑन कर सकते हैं अपन, तो एक्स्ट्रा लिखने के लिए बेसिकली
अपना जैसे आप बोलते हैं कि वर्क एक्सपीरियंस वाला सेक्शन, वो तो आपने जो किया दैट इज सेम, दैट कांट बी चेंज। लेकिन अगर आप कुछ अदर से कुछ इंटर्नशिप कर रहे हो, सो वो अगर मेंशन कर सकते हो तो वो एक एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, कुछ जैसे आप सोशली किसी चीज पे एक्टिव हो, या फिर किसी आप सपोज किसी एनजीओ से एसोसिएटेड हो, या फिर कुछ एक्स्ट्रा आपका कुछ आर्टिकल फीचर हो गया, या फिर सपोज मतलब टिल नाउ कुछ भी जैसे आप सोचो कि व्हाट एक्स्ट्रा आई हैव डन विच आई कैन मेंशन हियर। अब एक्स्ट्रा लिखना क्यों है, वाई टू मेंशन, ताकि ही कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दैट, और उसको पर्सनली वो हिट करे, इमोशनली हिट करे, एंड वो आपकी तरफ, आपके सीवी की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट हो, उससे क्वेश्चन पूछे, आप आंसर कर पाओ। आपका जो 20 मिनट है, आप 20 मिनट या 30 मिनट जो भी इंटरव्यू है वो उसी फ्रेम में आप खींच पाओ। ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे क्या होगा, ही विल रोस्ट यू बेसिकली, मतलब पूरा आपको है ना बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेगा। ठीक है। और एक क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन, दूसरे के बाद तीसरा, तो एक स्पेसिफिक चीज जो अपन को अच्छे से आती हो, अपन इंटरव्यूअर को केवल उसी पॉइंट से क्वेश्चन पूछने का मौका दे, जो उसको भी आती हो अपन को भी आती हो, सो दैट वी कैन आंसर। सीवी में से क्वेश्चन पूछने का अपन उसको मौका दे। तो लाइक दिस वी हैव टू मेक आर सीवी अट्रैक्टिव। उसमें जो एक्स्ट्रा है उसको आप स्पेसिफिकली होल्ड करो, उसको ऊपर दिखाओ। ठीक है। तो अभी करना क्या है बेसिकली, फाइनली सीवी कैसे बनाना है। तो फाइनली जैसे एक टेम्पलेट लिया मैंने, विद क्लाइंट नेम वाला टेम्पलेट ले लिया, इसमें मैंने ये सब ऊपर लिखा, यहाँ पे मैंने एक वर्क एक्स के ऊपर एक स्किल्स का सेक्शन भी ऐड कर दूंगा, या फिर यहाँ नीचे भी कर सकता हूँ। स्किल्स का एक सेक्शन ऐड कर दिया, या फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया कि दिस इज दी स्टैच्यूटरी ऑडिट। ठीक है। स्टैच्यूटरी ऑडिट के नीचे क्लाइंट के नेम यहाँ पे लिख दिए, स्टैच्यूटरी ऑडिट के नीचे यहाँ पे क्लाइंट के नेम लिख दिए, और यहाँ लिख दिया स्किल्स, यहाँ पे स्किल्स लिख दिया इसकी जगह। और फिर यहाँ पे वो स्किल्स कॉपी कर दिए, इस जगह पे स्किल्स कॉपी कर दिए, और फिर यहाँ पे जो काम किया था परफॉर्मेंस एरियाज वो लिख दिया। ठीक है। दिस इज बेस्ट थिंग। यहाँ पे स्टैच्यूटरी ऑडिट लिखा, वर्क छोटे से क्लाइंट नेम लिख दिए, यहाँ स्किल्स लिख दिया, या फिर यहाँ पे क्लाइंट नेम और ब्रैकेट में स्किल्स लिख दिया, या फिर ऊपर लिखना चाहो तो ऊपर स्किल्स लिख दिया, किसी भी फॉर्म में आप बनाओ। फिर उसके बाद में यहाँ पे आपने परफॉर्मेंस एरिया लिखा, क्या क्या काम करा वो सब लिखा, और फिर एक्स्ट्रा करिकुलर ये सब लिखा। अभी होगा क्या, ये अपन ने सीवी बेसिकली बना लिया। अब उसमें देखना है अपन को कि क्या अपने की फैक्टर बनेगा सीवी में, की फैक्टर की उसका अपन को सबसे ज्यादा किस पे ध्यान लेके जाना है सीवी पे इंटरव्यूअर का, जिसपे जिसमें सात से पहला, देखो 3 स्टेज होंगे। पहला स्टेज होगा सीवी शॉर्ट टेस्टिंग का, दूसरा होगा आपके सबसे पहला होगा एचआर का प्री स्क्रीनिंग राउंड। ठीक है। फिर कॉल करके पूछेगी, फिर उसके बाद सीवी आप भेजोगे, सीवी भेजने के बाद मान लो, सॉरी पहले तो सीवी शॉर्टलिस्टिंग का राउंड होगा। सीवी शॉर्टलिस्टिंग के लिए कीवर्ड आपको लिखना पड़ेगा, ये सब चीजें डालनी पड़ेगी। फिर एचआर का राउंड आएगा, वो क्लियर करना पड़ेगा, मतलब एचआर का प्री स्क्रीनिंग कॉल। फिर आपके इंटरव्यू रहेगा। अब इंटरव्यू के बाद नॉर्मल टेक्निकल राउंड रहेगा, फिर उसके बाद एचआर राउंड भी रह सकता है। तो मेन है टेक्निकल राउंड अगर आप क्लियर कर जाते हो तो टेक्निकल राउंड के लिए क्या करना है, जो भी चीज आपने सीवी में लिखी है उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। कि सपोज आपने आर्टिकलशिप आज की 6 महीने पहले छोड़ दी थी, तो आपने लिख दिया कि मैंने ये क्लाइंट की ऑडिट करी। अब उस क्लाइंट का आपको कुछ भी पूछ सकते हैं कि वो क्लाइंट में कैसे, वो क्लाइंट अपना बिजनेस रन करता है, उसके की फंक्शंस क्या क्या हैं, केपीआईज क्या क्या है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या क्या हैं उस क्लाइंट के। उस क्लाइंट में जैसे आपसे पूछा था कुणाल कि आपने एक पर्टिकुलर ये कॉइल टू पर्टिकुलर किसी शीट्स में कन्वर्ट होते हुए उसकी प्रोसेस की ऑडिट करी, तो उसका कंप्लाइंस पर्सपेक्टिव कैसे देखते हैं। तो ऐसे वो कुछ भी क्वेश्चन पर्टेनिंग टू दिस पूछ सकता है। ठीक है। तो इसलिए अपन को उस पर्सपेक्टिव से भी उस क्लाइंट की स्टडी करनी है कि हाउ द बिजनेस एक्यूमेंट थोड़ा डेवलप करके उसकी स्टडी करनी है, जो अपन ने काम करा वो, प्लस थोड़ा अदर देन दैट वाइडर एक थॉट प्रोसेस रखें। तो ये बेसिकली सीवी का आ गया। अब अपन थोड़ा गो थ्रू कर लेते हैं। ठीक है। ये 2 टाइप के फॉर्मेट हो गए। डोमेन वाइज सीवीज एक बार देख लेते हैं, डोमेन वाइज सीवीज में अपन क्या क्या लिखते हैं। तो सबसे पहले जैसे स्टैच्यूटरी ऑडिट का लिखा मैंने कि प्रोफाइल समरी लिख दी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट विद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन स्टैच्यूटरी इंटरनल एंड कंट्रोल इवैल्यूएशन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। साथ साथ स्किल्ड कहाँ कहाँ पे हूँ मैं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, रिस्क असेसमेंट, एंश्योरिंग कंप्लायंस।
की स्किल्स अपन ने डिस्कस किए अभी। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आर्टिकलशिप का यहाँ पे वो मैंने वर्क डन में लिख दिया। एजुकेशन अचीवमेंट्स, ठीक है, ये तो नॉर्मल है, उसी टेम्पलेट में आप बनाएंगे जिसमें अपन ने लास्ट में 2 टेम्पलेट जो देखे थे। दूसरा, एक जैसे अभी राज ने भी जो ये आपको टेम्पलेट शेयर किया ना ग्रुप पे, तो इस टाइप की टेम्पलेट में भी आप बना सकते हो, बट मेक श्योर कि आप ये सब प्रॉपरली, मतलब इस फॉर्मेट में आप प्रॉपरली सब चीजें एडजस्ट कर पा रहे हो। और फिर किसी भी आप जैसे कंपनी के पोर्टल पे अपनी आईडी बनाओगे तो उस पे कि अपलोड करके देखोगे एटीएस पे, तो एटीएस पे अपलोड करके देखोगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। हम्म, फिर उसके बाद दूसरे अपन, जैसे इंटरनल ऑडिट का है, तो इंटरनल ऑडिट में भी अपन ने क्या किया कि बेसिक अपन ने करियर ऑब्जेक्टिव लिख के फिर उसके बाद स्किल्स लिख दिया इंटरनल ऑडिट की, ये स्किल्स हैं। फिर जो आर्टिकलशिप का था थोड़ा बहुत वर्क वो लिख दिया। तो आर्टिकलशिप का जो वर्क है वो तो आप बेसिकली स्टैंडर्ड पॉइंट से ले सकते हो, स्किल्स यहाँ से ले सकते हो, स्टैंडर्ड पॉइंट से आप एक्सपीरियंस ले सकते हो, और टेम्पलेट आप वाला ले सकते हो। तो तीनों चीज से आपकी सीवी प्रिपेयर पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली डोमेन वाइज सीरीज हो गई, स्टैंडर्ड पॉइंट्स हो गए। स्टैंडर्ड पॉइंट्स में अगर अपन डिस्कस करते हैं कि क्या क्या एक बेसिक गलती करते हैं, मतलब हम जब सीवीज अपना बनाते हैं तो क्या क्या बेसिक गलती करते हैं, ठीक है, वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे सबसे एक सीवी अगर मैं लेता हूँ, सीवी छोड़ो ये पॉइंट्स, ठीक है, हाँ हाँ। तो कुणाल जैसे आप बताइए कि अम, शुरू के मेरे को 3 पॉइंट पढ़ के बताइए कि इसमें अपन में से फर्स्ट वाले में अपन ने क्या किया। assisted in the preparation of EOM paragraph of independent auditors report in accordance with SS 706. हाँ, तो मतलब इसमें बेसिकली है क्या कि जैसे मैं एक एज अ इंटरव्यूअर आपको पूछता हूँ कि व्हाट यू हैव डन, कि यू हैव असिस्टेड इन प्रिपरेशन ऑफ मैटर पैराग्राफ ऑफ इन इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, सो व्हाट वाज दैट मैटर यू हैव असिस्टेड इन प्रिपरेशन ऑफ। सर इस केस में ये सर बेसिकली कर, हाँ हाँ बताइए। मतलब सर वो मैटर क्लिक मतलब एक मैटर क्लिक होना चाहिए ना मतलब वो। ठीक है, तो इसके लिए कि जो जो भी अपन पॉइंट्स यहाँ पे लिखेंगे, तो उसके लिए क्या होता है कि एक जैसे जो भी लिखेंगे उसके बाद उसको एक एक पॉइंट वाइज गो थ्रू कर लेंगे, कि जैसे एम्फेसिस और मैटर में अपन क्या क्या करते हैं कि सेपरेट सेक्शन है जिसमें कुछ कुछ होता है कि भाई एम्फेसिस और मैटर इज नॉट ए मॉडिफिकेशन ऑडिट रिपोर्ट, कोई स्पेसिफिक की दिया है जिसमें ऑडिटर फोकस करना चाहता है बट उसकी वजह से ये अपनी ऑडिट रिपोर्ट को क्वालिफाई नहीं करना चाहता। ये बेसिकली की ऑडिट मैटर से भी डिफरेंट है, एम्फेसिस और मैटर, ठीक है। तो इस तरीके से काम करते हैं कि कब कब करना चाहिए एम्फेसिस और मैटर, कब इंक्लूड करना चाहिए एम्फेसिस और मैटर। जैसे मान लो अपने हुआ क्या कि एक फाइनेंशियल्स प्रिपेयर होने थे, नॉर्मल नॉर्मल ऑडिट एप्लीकेबल थी, फाइनेंशियल प्रिपेयर होने थे, बट फाइनेंशियल्स की डेट एक्सटेंड हो गई, फाइनेंशियल प्रिपरेशन की जो बोर्ड मीटिंग वो सॉरी एजीएम की डेट अपन एक्सटेंड करा ली 3 मंथ से, ठीक है। एजीएम की नॉर्मल डेट होती है 30 सितंबर, 3 मंथ से एक्सटेंड करा के उसको 31 दिसंबर पे अपन लोग लेते हैं। लेकिन टैक्स ऑडिट की डेट है 30 सितंबर, तो टैक्स ऑडिट तो कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो टैक्स ऑडिट कंप्लीट करने के लिए अपन ने एक स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल्स बनाए, ठीक है। वो स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल्स को अपन कहाँ दिखाएंगे, एम्फेसिस और मैटर में दिखाएंगे कि दिस फाइनेंशियल इज स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल बिकॉज statutory audit is not completed, or that's why we have prepared this special purpose financials, and we are considering it as a like and we are showing it here as an emphasis on matter, ठीक है। तो ये पॉइंट अपन दिखा देंगे उसमें। तो ये सब चीजें फिर Schedule 3 से कंप्लायंस, Schedule 3 की अभी थोड़े टाइम पहले 2-3 साल पहले रिवाइज कुछ गाइडलाइंस आई थी, ठीक है, कि Schedule 3 में क्या क्या चेंजेस आए थे उसके अकॉर्डिंग कुछ गाइडलाइंस आई थी। तो उसके अकॉर्डिंग चेक किया, इंडिया 116, जैसे कोई पूछ ले आपसे कि
व्हाट्स द बेसिक पर्पज ऑफ इंडेस 116 की पहले भी अकाउंटिंग होती थी, बाद में अभी फिर 116 का पर्पज क्या है आरयू एसेट का? राज आप बताइए। हेलो। हाँ राज। सर अभी रिकॉल नहीं हो नहीं 116 यार, इंडेस 116 आरयू एसेट। रहा। सर वो बेसिकली लीजेस के बारे में बात करता है कि लीज लाइबिलिटी कितना रिकॉर्ड करना है। ओके, कुणाल आप बताइए। ये सर अभी ये 116 में क्या है, मतलब इसमें 109 का भी इसमें कुछ इम्पैक्ट डाला है, जिसमें पहले तो मतलब लास्ट पहले 109 का मतलब कुछ भी इंटरेस्ट एक्सपेंस या इंटरेस्ट इनकम अपन बुक नहीं करते थे एएस में, 116 में करते, मतलब इंडेस में करते, क्योंकि सर नहीं वो नहीं, ओवर द। सी 116 में क्या होता है कि देयर इज आरयू एसेट एंड लीज लायबिलिटी। होता क्या है कि सपोज देयर इज एक बिल्डिंग है, ठीक है, एक बिल्डिंग को भी अब टेकन ऑन लीज, दैट वी हैव लीज टेकन ऑन लीज फॉर 9 years। अब हुआ क्या कि अपन क्या करते हैं, 9 साल उसका कुछ एक, सपोज स्टार्टिंग ईयर में 1 लाख रुपीज का रेंट है, वो 1 लाख का रेंट अपन 1 साल तक पे करेंगे, बाद में 10% से इंक्रीज होकर 1.1 लाख हो जाएगा, तो ऐसे इंक्रीज होता जाएगा 9 years तक, कुछ अपन रेंट पे करेंगे। अब ये क्या बोलता है कि दिस इज योर एसेट। आपने क्या किया, अपनी बुक्स में एक बिल्डिंग खरीदने की जगह या फिर बिल्डिंग खुद बनाने की जगह एक लीज पे ले ली बिल्डिंग, ठीक है। ये दिस इज लॉन्ग टर्म लीज। शॉर्ट टर्म लीज का एग्जाम्पशन है कि उसकी आप अकाउंटिंग आरओ एसेट की नहीं कर सकते, तो ठीक है, लॉन्ग टर्म लीज है। तो इंडेस बोलता है कि भाई इसको आप अच्छी तरीके से बैलेंस शीट में प्रेजेंट कर सकते हो, कैसे? इसके 9 साल का जो लीज का आपके लीज पेमेंट्स है उसको डिस्काउंट करके लाओ। डिस्काउंट किस रेट से करके लाओगे? बेस्ड ऑन जो भी इम्प्लिसिट रेट रहेगी, ठीक है, आईआरआर जो भी आपकी रेट रहती है, जो इंडिया 106 बोलता है, उस पर डिस्काउंट करके लाओगे। डिस्काउंट करके लाने के बाद फिर उस रेट पे आप उसका आरओ एसेट और लीज लाइबिलिटी सेम अमाउंट से बना दोगे, तो फिक्टिटियस एसेट बन गया आरओ एसेट, फिक्टिटियस लाइबिलिटी बन गई लीज लाइबिलिटी। आप क्या करोगे, आरओ एसेट को आप नंबर ऑफ डेज के बेसिस पे डेप्रिशिएट करोगे, जैसे कि अपन बिल्डिंग में करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिशिएशन, या ठीक है, उस बेस पे आप इसको नंबर ऑफ डेज के बेसिस पे डेप्रिशिएट करोगे। लीज लाइबिलिटी को क्या करोगे, ईयर ऑन ईयर आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे, इंटरेस्ट जो आपका एक्सपेंस होगा, ठीक है। तो एक तरफ तो आरओ एसेट पे आपका डेप्रिशिएशन एक्सपेंस जाएगा, एक तरफ आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस जाएगा लीज लाइबिलिटी पे। दूसरा, लीज लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज होती जाएगी, फिर लेकिन आप लीज लाइबिलिटी में माइनस कर दोगे जो लीज पेमेंट्स आपने करे, लीज पेमेंट एक्चुअल लीज पेमेंट आपने करे एज पर टर्म, शुरू में 1 लाख रुपए जो आपका था, ठीक है। तो क्या होगा, ओवर द पीरियड ऑफ दिस 9 year टेन्योर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 year के टेन्योर पे दिस डेप्रिशिएशन प्लस इंटरेस्ट विल इक्वल टू योर मंथली लीज पेमेंट, टोटल ऑफ मंथली लीज पेमेंट। ओवर द पीरियड ऑफ 9 months इट विल बी सेम, बट व्हाट विल हैपन, शुरू में आपकी बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन विल डिफर, एंड योर expense that expense booking in the P&L will differ, ठीक है। एक्सपेंस बुकिंग जो P&L में जाएगा वो अलग होगा। तो दिस इज द बेसिक पर्पस। इससे क्या पर्पस मीट हो रहा है कि आपका जो एक्चुअल एसेट है, बेसिकली ये भी आपका एसेट है, सपोज देयर आर सम सर्विस एंटिटीज जो बेसिकली सब कुछ भी उसके पास ओन मैन्युफैक्चर, कुछ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी नहीं है, सेल्फ ऑक्यूपाइड कोई लैंड बिल्डिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, इट ओनली वर्क्स ऑन दिस मॉडल, लीज पे लेती है, उस पर काम करती है। तो एक्चुअली तो लीज इज अ बिगेस्ट एसेट ऑफ इट, क्योंकि वो लीज उसके पास है तभी उसका बिजनेस चल पा रहा है, बट उसके फाइनेंशियल में वो एसेट कहीं भी नहीं दिख रही है, इसलिए दिस इज द बेसिक पर्पस, ठीक है। तो नेक्स्ट सीएसआर के एक्सपेंस का आप पॉइंट्स लिख सकते हो, क्योंकि सीएसआर बेसिकली नीड्स टू बी कंप्लाइड बाय एवरी कंपनी, जब वो 3 क्राइटेरिया मैट कर जाती है कि 5 करोड़ से या उससे ज्यादा नेट प्रॉफिट, या फिर 500 करोड़ से ज्यादा कुछ टर्नओवर, और 1000 करोड़ से ज्यादा नेटवर्थ, ऐसा कुछ करके शायद कुछ है ना नेटवर्क, ये 3 लिमिट जो है। तो सीएसआर की कंप्लायंस क्या होती है कि सीएसआर कब कब पे करना पड़ता है, सीएसआर कमिटी कब बनानी पड़ती है, नहीं पे करे तो क्या चार्जेस है, ये सब क्वेश्चंस भी अच्छे लेवल ऑफ इंटरव्यूज में पूछ सकते हैं। इवन आईटीसी के इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछते हैं कि सपोज सीएसआर अपन को पे करना है पर नहीं पे किया तो उसकी क्या पेनल्टी है, ठीक है। तो ये सब बेसिकली दीज आर जनरल पॉइंट्स, ये आप बोल सकते हो कि मैंने किसी भी एंटिटी में चेक करा था
और उसका आंसर भी कर सकते हो एक जनरल पॉइंट के फॉर्म में। ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट है आपका जैसे कि सैंक्टिटी, वेरीफाइड द सैंक्टिटी ऑफ एक्सपेंसेस बुक्ड। ठीक है। पॉसिबल एंड प्रोबेबल ऑब्लिगेशन वेरियस मैटर्स, इंडेक्स 37, यहाँ पे वापस अपन एक इंडेक्स कोट कर दिया, दैट इज इंडेक्स 37। और इंडेक्स 37 किस चीज से रिलेट करता है कुणाल? सर प्रोविजंस कंटीजेंसीज एंड प्रोविजंस एंड कंटीजेंसीज। ठीक है, तो ये हो गया प्रोविजंस, कंटीजेंट लायबिलिटीज एंड कंटीजेंट एसेट्स। So basically, he'll give you different scenarios. Suppose you have checked provisions as per India 37. So he'll give you different scenarios. In that case, what you have to answer is whether it is a form of whether we need to create a provision or it is sufficient to show a contingent liability in that scenario. Suppose we stuck in a lab. So we have uh, there is a pollution control board. He has visited our premises. He suppose he fined or he has imposed a penalty of 5 lakh rupees on the company for this reason. Okay. So he'll give you 3-4 situations, different situations. In that case, we have to identify whether we need to make a provision of it or we have to basically show it as a contingent liability. Okay. So this is how they ask. Next क्या पूछ सकते हैं कि जैसे we'll cover these questions later on also in the interview questions which we'll have. तो बेसिकली मतलब होगा क्या कि ये पॉइंट्स आप मेंशन करोगे ना, सो ऑन दीज पॉइंट्स दे विल आस्क सम क्वेश्चंस। तो दीज आर पर्टेनिंग टू योर स्टैट्यूटरी ऑडिट, सम पॉइंट्स आर पर्टेनिंग टू योर इंटरनल ऑडिट। जैसे अपन ने स्टैट्यूटरी ऑडिट के कुछ पॉइंट डिस्कस करे, विल डिस्कस सम पॉइंट्स ऑफ इंटरनल ऑडिट आल्सो इन दिस क्लास। तो क्या होगा, क्या इंटरनल ऑडिट की बात करते हैं। इंटरनल ऑडिट के जहां पे बात आ जाती है तो फर्स्ट इज योर RACM, रिस्क असेसमेंट कंट्रोल मैट्रिक्स, या RCM भी बोलते हैं काफी लोग इसको। ठीक है। डू यू हैव एन आइडिया कि ये RCM क्या होता है, RCM मैट्रिक्स क्या होते हैं राज? राज? हेलो। हाँ। हेलो। यस, यू आर ऑडिबल। हाँ, सॉरी सॉरी सर, क्या बता रही है? आप मुझे बताइए कि व्हाट इज RCM। सपोज यू आर डूइंग इंटरनल ऑडिट ऑफ अ कंपनी और फ्रॉम द एज ए कंसल्टेंट, सो व्हाट इज RCM एंड सर हाउ विल यू चेक इन इंटरनल ऑडिट? रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स या रिस्क असेसमेंट कंट्रोल सर मैट्रिक्स क्या होता है? आरसीएम रिस्क रिस्क असेसमेंट के बारे में है। आई विल आइडेंटिफाई द एरियाज जहाँ पे रिस्क रह सकता है, और मैं चेक करूंगा कि उसके रिलेटेड कंट्रोल्स एग्जिस्ट करते हैं क्या, एंड हाउ इफेक्टिव द कंट्रोल्स आर, एंड आई विल परफॉर्म अ टेस्टिंग रिगार्डिंग द सेम, एंड फाइन। विल अगर कहाँ पे कंट्रोल्स है ही नहीं तो वहाँ पे कंट्रोल डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। ओके। सी यू बेसिकली गिव अ मिक्स्ड रिस्पॉन्स कि आपने क्या बोला कि दिस, मैं सबसे पहले आइडेंटिफाई करूंगा कि रिस्क क्या है, फिर इसके बाद कंट्रोल्स क्या है। तो बेसिकली होता क्या है कि इन बिग कॉर्पोरेट्स देयर इज अ RCM मैट्रिक्स। दिस कंट्रोल मैट्रिक्स मतलब होता है ऑलरेडी, उसमें क्या होता है, बहुत सारे रिस्क क्लाइंट विल आइडेंटिफाई ऑन हिज ओन, रिस्क आइडेंटिफाई करके देगा अपन को। अपन यहाँ पे लिख लेते हैं ये। ठीक है। क्लाइंट विल आइडेंटिफाई द रिस्क, ही विल प्लॉट इट डाउन, विल आइडेंटिफाई द controls which client has implemented. ठीक है। who is responsible for that control, responsible, whether, and he'll, what's the risk level of risk, low level of risk, high level of risk और moderate level of risk। ठीक है। फिर रिस्क में मतलब मैपिंग करेंगे, लो रिस्क, हाई रिस्क और मीडियम रिस्क। ठीक है। हु इज रिस्पॉन्सिबल। फिर उसके बाद ऑडिटर क्या करेगा, दिस इज द क्लाइंट का वर्क। ऑडिटर क्या करेगा, इंटरनल ऑडिटर, ही विल चेक कि रिस्क सारे लिखे नहीं लिखे, कंट्रोल इज अप्रोप्रिएट टू दैट रिस्क। अब जो कंट्रोल लगाए, वो कंट्रोल जो लगाए वो कौन कौन से कंट्रोल है, प्रिवेंटिव है, ठीक है, प्रिवेंटिव कंट्रोल है, या डिटेक्टिव है, या फिर एक और होता है प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव और करेक्टिव। करेक्टिव। ठीक है, करेक्टिव है। तो किस टाइप का कंट्रोल है,
अब फिर चेक करेगा कि ये जो कंट्रोल है ये क्या सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा किसी भी एंटिटी में। अब वो चेक कैसे करेगा, ही विल आस्क फॉर सम ऑफ द सैंपल्स फ्रॉम दैट क्लाइंट, कि आप मुझे 2-3 ये सैंपल दे दो। वो सैंपल को टेस्ट करेगा, वेरीफाई करेगा, चेक करेगा कि एक्चुअल में जो रिस्क लिखा है उसके लिए जो रिस्क मतलब सब सडनली कोई रिस्क है उसके लिए जो कंट्रोल लिखा है वो कंट्रोल प्रॉपरली फॉलो हो रहा है या नहीं। ठीक है, क्योंकि there is a requirement in audit report that auditor has to go through. He has to like some annexure is there. On firstly, he has to report on the CARO. Secondly, on the IFC internal financial controls. ठीक है, IFC पे ही नीड्स टू रिपोर्ट। IFC एप्लीकेबल कब होता है, जब आई थिंक देयर आर सम लिमिट्स की 50 करोड़ से ऊपर का कुछ आपका पेड अप कैपिटल या ऐसा कुछ लिमिट है। तो बेस्ड ऑन दैट IFC का जो रिक्वायरमेंट है वो IFC की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेक करके देखेगा कि पहला तो ये हो गया, और दूसरा कारों में भी एक है कि भाई वेदर द एंटिटी इज हैविंग इंटरनल कंट्रोल्स और नॉट। ठीक है, तो ये बेसिकली दोनों चीज में ऑडिटर को ये RSCM चेक करना पड़ेगा। स्टैट्यूटरी ऑडिटर की बात है ये। इंटरनल ऑडिटर अगर आप हो तो इंटरनल ऑडिटर का तो काम ही ये कि कहाँ कहाँ पे एंटिटी में रिस्क है, उसके क्या क्या कंट्रोल है वो चेक करेगा। दूसरा बहुत सारी प्रोसेस को गो थ्रू करेगा। अब प्रोसेस कौन कौन सा होता है ये अपन ने पूरा रिस्क कंट्रोल मैट्रिसेस को समझा। अब दूसरा क्या होता है, इंटरनल कंट्रोल में डिपार्टमेंट वाइज भी होती है इंटरनल ऑडिट, कि जैसे मान लो मैंने सेल्स एंड मार्केटिंग की मैं ऑडिट कर रहा हूँ। सेल्स एंड मार्केटिंग की अगर मैं ऑडिट कर रहा हूँ तो सेल्स मार्केटिंग के ऑडिट में मैं डिस्काउंट को एक पर्टिकुलर सपोज एक एरिया है, डिस्काउंट सपोज आप एक सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का एक डिस्काउंट की पॉलिसी चेक कर रहे हो। इफ यू आर चेकिंग दैट, तो कुछ होता है आपको प्री एग्रीड डिस्काउंट, कुछ होता है पोस्ट पोस्ट सेल डिस्काउंट, प्री सेल डिस्काउंट, पोस्ट सेल डिस्काउंट। प्री सेल डिस्काउंट सपोज होता है कि भाई आप मेरी एक जनरल डिस्काउंट है कि अगर आपने एक बार में 1 लाख से ऊपर की बैग्स उठाए, 1 लाख से ऊपर के बैग उठाए, या फिर मान लो 1,000 से ऊपर के बैग उठाए, तो मैं आपको 10% डिस्काउंट दे दूंगा या 2% डिस्काउंट दे दूंगा सपोज। ठीक है, 2% डिस्काउंट दे दूंगा। लेकिन फिर एक पोस्टल डिस्काउंट होता है कि अगर आपने एक टोटल में एक महीने में इन अ मंथ इफ यू सपोज बॉट मोर देन 1 लाख बैग्स इन अ मंथ, देन द total on the total bags which you have purchased, I'll give you a flat discount of 2 rupees per bag. This is a post sale discount. This discount is conditional on purchase of this 1 lakh units in a month. So basically अगर ये अचीव कर लेता है तो दिस सीमेंट कंपनी विल इशू ए क्यूमुलेटिव क्रेडिट नोट फॉर दिस डिस्काउंट। ठीक है, तो ये क्रेडिट नोट एक इशू कर देगी कि दिस वाज द। ठीक है, तो इस तरीके से 2 टाइप के डिस्काउंट हो गए। अब ये डिस्काउंट में ये पहले क्या ऑडिटर क्या चेक करेगा कि ये डिस्काउंटिंग की पॉलिसी इज अप्रूव्ड और नॉट, जो भी डिस्काउंट दे रहे हैं वेदर इट इज अप्रूव्ड और नॉट। अप्रूवल अगर है तो एज पर DOP है नहीं है। DOP मीन्स डेलीगेशन ऑफ पावर, इसको किसने अप्रूव करा। उसके बाद क्या चेक करेगा कि जो मंथली प्री सेल डिस्काउंट है वो इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग है नहीं है, सैंपल बेस पे। पोस्ट सेल है तो उसमें क्वांटिटी की कैलकुलेशन चेक करेगा, फिर उसके बाद उसका क्रेडिट नोट की कैलकुलेशन चेक करेगा, एवरीथिंग सैंपल बेस पे। So this is a particular sub area. Area is this sales and marketing. In this sub area is this discount. So this is how this internal audit process is done. अब उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। सपोज आपने किसी क्लाइंट की इंटरनल ऑडिट करी, मैंने सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करी है यहाँ पे, तो उसमें कौन कौन से पॉइंट्स, जैसे आप एक सैंपल पॉइंट मैंने बताया, तो उसमें क्या क्या लिख सकते हो आप कि मैंने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक करे। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, जैसे रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स तो आपकी हो गई, तो रिस्क कंट्रोल में क्या होता है, दूसरा इज रिस्क कंट्रोल, दिस कंट्रोल। तो दिस कंट्रोल इज कॉल्ड इंटरनल कंट्रोल बाय द कंपनी। सो ये इंटरनल कंट्रोल विल चेक कौन कौन से में सेल्स मार्केटिंग डिपार्टमेंट में चेक करा, परचेज में चेक करा, F&A में चेक करा, माइंस में चेक करा, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स थे उसमें चेक करा, टेस्ट करा जो ये बेसिकली रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स था उसको टेस्ट करा। फिर मैंने कुछ जैसे बेसिकली ऑपरेशनल लीगल कंप्लाइंस भी देखी जो इंटरनल ऑडिटर के स्कोप में थी। ठीक है, कस्टमर के कुछ चार्जेस बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से आ गए, है ना। और साथ साथ जैसे अलग अलग इंटरनल कंट्रोल ऑफ सेल्स मार्केटिंग के चेक करे, मतलब की पॉइंट्स अपन ने लिख दिए। रीइंबर्समेंट एक्सपेंसेस थे कुछ, वो चेक कर लिए सैंपल बेस पे। फिर उसके बाद वर्क एफिशिएंसी चेक कर ली गेट सिक्योरिटी की। ठीक है, फिर उसके बाद मान लो मैंने कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट था, इशू डिपार्टमेंट, उसका चेक कर लिया कुछ डिटेल्स जो थी। तो जो जो डिपार्टमेंट, मतलब ये बेसिकली जनरल पॉइंट्स है। अपने जो पॉइंट्स अपने ड्यूरिंग आर्टिकलशिप वर्क टेन्योर जो आपने करे हैं, तो आप वो आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हो। ठीक है,
तो ये इंटरनल ऑडिट आपके हो गए। वैसे ही डायरेक्ट टैक्स के कुछ पॉइंट्स हैं और इनडायरेक्ट टैक्स के भी कुछ पॉइंट्स हैं। तो डायरेक्ट टैक्स में जैसे मैंने आपको बताया था कि 3 फॉर्म होते हैं। There are 3 forms in which you can walk into direct tax. First is compliance, second is advisory, third is litigation. तो आपने किस वर्क एरिया में काम करा है वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसके बेस पे आपको लिखना पड़ेगा। जैसे दिस इज अ कंप्लाइंस पॉइंट ऑफ व्यू कि मैंने मॉडिफाइड आईटीआर फाइल करी 170 170 ए सेक्शन में। ठीक है, मैंने आइडेंटिफाई द रेलिवेंट मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग द एएलपी 92 सी के अकॉर्डिंग एएलपी आर्म्स लेंथ प्राइसिंग, और इसकी एक रिपोर्ट भी जाती है। ठीक है, जो अभी टीपी ऑडिट होती है 30 नवंबर लास्ट डेट। तो ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट्स 92 इमेज दी थी, वो आ गया। ये मेरा आ गया लिटिगेशन में, बेसिकली 750 प्लस सबमिशंस दिए। तो दिस इज द वर्क, मतलब बेसिक वर्क जो आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद वैसे ही अपन आते हैं इनडायरेक्ट टैक्स में। तो इनडायरेक्ट टैक्स में वही जीएसटी का एक तो मंथली कंप्लायंस में आपका इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, आपका कोई अगर जीएसटी टीडीएस होता है उनके रिटर्न्स मान लो। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जैसे आप स्पेसिफिक कुछ अगर सेक्टर्स कवर किया, आपने होटल की अगर कवर किया है, तो होटल में क्या होता है, स्पेसिफिक स्पेसिफिक जीएसटी प्रोविजंस है कि जैसे जो नए जीएसटी के आपके अमेंडमेंट्स आए हैं, तो उसको एक आप बार जरूर से गो थ्रू कर लेना, नए जीएसटी के अमेंडमेंट्स जो आए हैं। ठीक है, क्योंकि जो लेटेस्ट जो अपडेट्स रहती है वो भी आपको टेस्ट करता है इंटरव्यूअर कि भाई जो आपने सीवी में दिखा साथ साथ जो लेटेस्ट है। तो जैसे आपको अगर कुछ आइडिया हो तो एक बार बताइए मुझे, क्या क्या आपको लेटेस्ट जीएसटी अपडेट्स पता है कुणाल? सर अभी डिमांड एंड रिकवरी में एक 74A आया है सेक्शन नया, वो ओके, एग्जाम उसमें में भी क्या है? आया है। वो सर डिमांड एंड रिकवरी में ऐसा है ना कि सोकोस नोटिस इशू करने का टाइम लिमिट से पहले 73 और 74 में था, एक विलफुल डिफॉल्टर का, एक नॉन विलफुल डिफॉल्टर का। तो वो ठीक अभी है। दोनों के लिए फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 सेम आ गया है। मतलब फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 चाहे वो फ्रॉड में रहे या ना रहे, विद इन 42 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एनुअल, फ्रॉम द डेट ऑफ ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न, तब तक इशू हो जाना चाहिए सोकस नोटिस। 42 मंथ से 12 महीने तक, 42 महीने के बाद मतलब 42वें महीने के बाद से 12 महीने तक में उसका ऑर्डर इशू हो जाना चाहिए। इस पे क्वेश्चंस भी आया, अभी क्वेश्चन भी आया सर, इसमें सितंबर टाइम में 2-3 क्वेश्चन आए इसमें। गॉट इट। ये अदर देन दैट कोई अभी रिसेंट अमेंडमेंट जो आपको पता हो? आरसीएम में सर, आरसीएम में थोड़ा थोड़ा चेंजेस आया है सर कि अभी हेलो यस। हेलो हाँ, यस राज। सर, अभी रिसेंट स्लैब रेट रिस्ट्रक्चर किया था उन्होंने। फाइन। 28% का हटा के 18%, कुछ तो 40% फॉर लग्जरी गुड्स एंड 5% फॉर एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज रखा है उन्होंने। फाइन फाइन। तो बेसिकली था क्या, जीएसटी में 0% रेट था, 3% रेट था, उसके बाद आपके 5%, फिर 12%, फिर 18, और फिर उसके बाद 28। सो दिस वॉज द रेट। ठीक है, नाउ व्हाट दे हैव डन, दे हैव एबॉलिश दिस वन, 12% हटा दिया। ठीक है, 40% यहाँ पे लेके आ गए। 40% में क्या किया कि जो कार्ड्स थे, कार्ड्स के लिए जो 28% की रेट थी, ठीक है, मतलब देखो सबसे पहले तो क्या किया कि 12% रेट हटा दिया, कुछ कुछ गेस्ट हाउस पे जो 12% की रेट थी उस सबसे हटा के उसको 5% पे कर दिया। ठीक है, 18% से काफी चीजों को रिड्यूस करके 5% पे लेके आ गए, 0% पे भी लेके आ गए स्टेशनरी को। ठीक है, काफी चीजों को 28% से हटा के 18% पे लेके आ गए। कुछ कार्ड्स के केस में क्या किया कि कार्ड्स के केस में भी जीएसटी तो उन्होंने कम कर दी। कि पहले क्या था कि जीएसटी लगता था प्लस उस पे सेस भी लगता था, काफी 42% चल जाती थी। तो कुछ कार्ड्स पे 40% लेके आ गए, कुछ कार्ड्स में 28% लेके आ गए, सेस को उन्हें एबलिश कर दिया। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ एग्जाम्पल है कि इस फॉर्म में इन्होंने चेंजेस करे हैं जीएसटी में। तो रीसेंट अमेंडमेंट्स हैं, ऑल वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो इसके मतलब मोस्ट पब्लिक एक्सपेक्ट फ्रॉम अस कि भाई वी शुड हैव एन आइडिया ऑफ ऑल ऑफ दिस थिंग्स, एंड this will show that how much you are updated with the current amendments in this market. ठीक है, तो ये बेसिकली मतलब आपको गो थ्रू सर करना है। ऑल्सो, यस। सर जस्ट एडिंग टू व्हाट वी जस्ट डिस्कस्ड कि हेल्थ एंड इंश्योरेंस में भी अभी 0% कर दिया उन्होंने। तो हाँ, ये भी फाइन काफी है फाइन फाइन फाइन। मार्केट में न्यूज। अर्लियर इट वाज 18% और उसके बाद वो रिड्यूस होके इट वाज
रिड्यूस टू 0%। तो उसके बाद जो शेयर, जो उनके स्टॉक्स थे शेयर इंश्योरेंस कंपनी के, दैट रोज अप टू लाइक फ्रॉम 6% टू 10% ऑन दैट डे। ठीक है, दिस वॉज द मार्केट इम्पैक्ट, बट ठीक है, ये चेंजेस भी करा। तो ये पॉइंट्स विल मेंशन कि जीएसटी में अपन इनपुट करते हैं आउटपुट, फिर उसके बाद इनपुट का तीन तीन टाइप से रिको बनता है। जीएसटीआर 2 बी से बनता है, 3 बी से बनता है, फिर उसके बाद एक है ना एनुअल भी आपका रिको बनता है। ठीक है, और बुक्स एक रहता है ये आपका। सो ये तीन रिकंसिलेशन बनते हैं। आउटपुट का आपका जीएसटीआर 1, 3 बी और आपका बुक्स का रिको बनता है। फिर एनुअल में क्या करते हैं, इनको अपन जीएसटीआर 9 सी में एक रिकंसिलेशन दिखाते हैं, बुक्स वर्सेस आपकी 9 का, बुक्स वर्सेस 9 का रिको रिकंसिलेशन 9 सी में दिखाते हैं। 9 में किस बेस पे पढ़ते हैं, जो आपकी चेक करते हैं 9 पे इनपुट और आउटपुट जो जाता है वो इन बेस पे जाता है। ठीक है, कुछ एडिशन डिलीशन होता है वो देखते हैं अपन, वो सब फिगर आउट करके उसमें डिमांड जो रहती है वो पे करते हैं, मतलब एडिशन जो बचता है वो पे करते हैं, तो रिफंड दिखाते हैं जो भी केस होता है कि ज्यादा पे किया, शॉर्टेज, एक्सेस, ये सब दिखाते हैं। ये सब चीजें हो गई। साथ साथ कुछ जीएसटी में नए अमेंडमेंट्स भी आए हैं, जैसे कि आपका आपका जो 2 बी का इनपुट है, ठीक है, वो ऑटो लॉक हो जाएगा। ठीक है, उसमें आपको इनवॉइस वाइज टिक करना पड़ेगा कि ये इनपुट मेरा है, ये इनपुट मेरा नहीं है। दीज आर द रीसेट अमेंडमेंट्स। आपने किसी को अगर रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, मान लो सामने वाले ने एक्सेप्ट नहीं किया कि भाई ये उसने परचेज नहीं करी आपसे, है ना, तो शायद आपके वो ऐसा है कि आउटपुट में कुछ एड ऑन हो जाएगा, ऐसा कुछ सिनेरियो भी है। तो ऐसे में तो कुछ रिसेंट अमेंडमेंट्स आए, इनवॉइसिंग के प्रोविजंस हैं जो आपको देखने हैं। ये सब हो गया, और ये सब बाकी जो स्टैंडर्ड पॉइंट्स है ये आप गो थ्रू कर सकते हो। वैसे ही कुछ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग प्रोफाइल्स के भी पॉइंट्स हैं, उसमें की पॉइंट्स है कि भाई क्या क्या प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में अपन लिख सकते हैं। कोर स्किल्स जो आपको दिखानी है वो है फाइनेंशियल मॉडलिंग, वैल्यूएशंस, ये सब आप जैसे कुछ देख सकते हो। आपने नहीं करा है अगर आर्टिकलशिप में तो आप लिख दो, उसके बाद लिख दो कि आई डिड इट माई सेल्फ। तो यूट्यूब चैनल जो मैंने आपको बताया था वैल्यूएशन स्कूल से कर लो, या फिर ऐसा कोई ड्यू डिलिजेंस अगर आपने करी है फाइनेंशियल, टैक्स या ऑपरेशनल, तो वो लिख सकते हो। इन्वेस्टमेंट का एनालिसिस, कोई इक्विटी कैपिटल मार्केट से रिलेटेड काम करा है, कोई पिच बुक प्रेजेंट करी है, ठीक है, तो वो सब आप कोर स्किल्स हाईलाइट करोगे। उसके बाद काम क्या कर रहा है दैट यू विल शो हियर। ठीक है, अब इसमें कुछ कुछ जनरल पॉइंट्स भी हैं जो आप ना अगर डोमेन स्पेसिफिक सीरीज में अगर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को सीवी बनाते हैं तो उसमें इन पॉइंट्स में से कुछ पॉइंट्स ले सकते हैं, बिकॉज दीज आर सम ऑफ द जनरल पॉइंट्स। ठीक है, जैसे बिल्ड 2+ फाइनेंशियल सर मॉडल्स, तो ये आप बना सकते हो खुद। ठीक है, इम्प्रूव फाइनेंशियल मॉडल एक्यूरेसी, इस तरीके से कुछ पढ़ के कर सकते हो आप। हाँ बताइए आज। सर वही एक क्वेरी था कि जैसे डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस का इतना एक्सपोजर नहीं मिला इंटर्नशिप के वक्त। ओके, एंड उस डोमेन में अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो फिर सीवी में क्या मेंशन करेंगे? ठीक है, तो होता क्या है सी, इसमें होता है कि सबसे पहले आपके पास सीवी शॉर्टलिस्ट होने के बाद है, सपोज यू आर अप्लाइंग फॉर अ डायरेक्ट टैक्स रोल, यू वांट टू वर्क इनटू दैट, तो व्हाट यू कैन डू, देयर आर सम पॉइंट्स की भाई जैसे आपने स्टैट्यूटरी ऑडिट करी, तो स्टैट्यूटरी ऑडिट में भी आप स्टैट्यूटरी के साथ अगर टैक्स ऑडिट भी कर रहे हो, तो टैक्स ऑडिट में काफी सारी चीजें आप देखते हैं कि टैक्स ऑडिट की क्लॉजेस देखते हैं, साथ साथ इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग भी आप देखते हैं, कंप्यूटेशन देखते हैं। तो दीज आर दोज पॉइंट्स इन विच यू कैन स्पीक समथिंग। तो वो पॉइंट्स आप ऊपर लिख दीजिए कि स्टैट्यूटरी टैक्स ऑडिट या फिर टैक्स रिलेटेड वर्क। फिर उसमें आप कुछ कुछ जैसे जो पॉइंट्स मैंने बताए उससे लिख दीजिए कि भाई I have filed this plus returns or in which I have gone through this provisions. I have read through the transfer pricing provisions, gone through that and checked the compliances pertaining to that. ठीक है, I have checked through the provisions। अगर आपने इंडिविजुअल की कोई रिटर्न फाइलिंग करी है तो उसका कंप्लायंस प्रोविजंस लिख दीजिए। आपने स्टैट्यूटरी ऑडिट में काफी टीडीएस के सेक्शंस गो थ्रू करे होंगे, ठीक है, तो टीडीएस के सेक्शंस हाँ। लिख दीजिए, गो थ्रू दिस टीडीएस यस। सेक्शंस। उसमें आइडेंटिफाई द नॉन कंप्लायंस ऑफ ₹2 crore विद दिस सेक्शन, स्पेसिफिक पॉइंट लिख दो ऐसा। ठीक है, देयर आर पॉइंट्स मतलब विच यू कैन मेंशन रिलेटिंग टू एवरी डोमेन, कि कुछ ना कुछ आपसे रिलेटेड उसमें मिल ही जाएगा। नहीं तो कोई जनरल पॉइंट्स भी डाल सकते हो। सर हाँ,
आपने बराबर बोला कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का ओवरलैपिंग तो रहता ही है हर डिपार्टमेंट के साथ में। हाँ। पर अभी जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, हम्म। उसमें थोड़ा डिफिकल्टी, फाइन, फाइन इनफ। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं अपन? बिकॉज उसका एक्सपोजर तो है ही नहीं। हम्म। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं कि कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि यूट्यूब से आप कुछ सेशंस देख के, अगर आपका इंटरेस्ट एरिया है इस फील्ड में, तो फिर वो सेशंस देख के आप फाइनेंशियल मॉडल डाल सकते हो। एक दो फाइनेंशियल मॉडल बना के यहाँ पे उसका लिंक भी डाल सकते हो कि लिंक ऑफ द प्रोजेक्ट इज अंडर। ठीक है, ये एक अलग आपके अपॉर्चुनिटी दे सकता है कि सीवी में इसका आपने लिंक डाल दिया कि दिस इज द फाइनेंशियल मॉडल प्रिपेयर्ड बाय मी, वो उसको ओपन करके कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेगा तो ही कैन आस्क। ठीक है। दूसरा चीज, कुछ जैसे नॉर्मल चीजें होती है कि फाइनेंशियल मॉडल अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल मॉडल में रेशियो एनालिसिस होते हैं, ट्रेंड ट्रेंड एनालिसिस होते हैं पास्ट ईयर्स का, फिर उसके बेस पे कुछ एक फोरकास्ट निकलता है, फिर आप है ना कॉस्ट ऑफ, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखते हो, केडी कैसे निकालते हैं, केई कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये सब आप फाइनेंशियल मॉडल से जब गो थ्रू करोगे तो उसमें पता चल जाएगा, तो उसी में आप पॉइंट लिख दोगे, मेंटेन डेवलप्ड अ फाइनेंशियल मॉडल, कैलकुलेटेड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी थ्रू दिस मेथड एंड। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो आपके डिफरेंट मेथड्स हैं, ठीक है, मॉडल बनाने के, कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड या फिर है ना कॉस्ट प्लस, जो भी मतलब दूसरे मेथड रहते हैं, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, उसके साथ है ना रेवेन्यू बेस्ड मॉडल कुछ रहता है, और फ्यूचर कैश फ्लो अप्रोच रहता है FCFF। ठीक है, फ्री कैश फ्लो अप्रोच जो रहता है, तो ये सब मेथड्स भी लिख सकते हो ना। तो इससे गो थ्रू करके कि एक आपने मॉडल बनाया, उस मॉडल पे काफी सारी चीजें आपने देखी, उसको आप लिख सकते हो। बाकी को उसको जनरलाइज भी ले जा सकते हो कि जिसपे आप कुछ बोल सकते हो। ठीक है, तो शुरू में आप वो पॉइंट्स लिख दोगे, फिर उसके बाद आप है ना जनरल आपके जो फाइनेंशियल कंसल्टिंग करके लिख दोगे, फाइनेंशियल एडवाइजरी। अब फाइनेंशियल एडवाइजरी में आप क्या लिख सकते हो, जैसे शुरू में जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिख दिया, तो फाइनेंशियल एडवाइजरी में आपने लिखा कि जैसे कि फाइनेंशियल प्रिपरेशन के लिए असिस्ट किया। आई वॉज ए कंसल्टेंट टू ए कंपनी इन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल एज पर इंडियस। ठीक है, तो उसमें इंडिया से कुछ कुछ पॉइंट्स लिख दिए, या फिर मैंने इस पे एडवाइस करा वो लिख दिया। तो फाइनेंशियल से आपको नॉलेज है, सो बेस्ड ऑन दैट यू हैव प्रिपेयर्ड दिस फाइनेंशियल मॉडल, दोनों चीज वी हैव कनेक्टेड, सो दिस विल वर्क फॉर यू। अब उसमें जो स्पेसिफिक काम से कि भाई बाय साइड सेल साइड कुछ या फिर पिच टैक्स वगैरह अगर आपने नहीं करी है तो ठीक है, उसके बाद आप नीचे लिख सकते हो कि जनरल वर्क में करके कि हैव रेड दिस कि मैंने इसकी रीडिंग कर ली, इसकी रीडिंग कर ली, तो बेसिक आइडिया अपन को है। दिस विल शो योर इंटरेस्ट, और साथ साथ अपन सीवी में वो की पॉइंट्स भी लिख देंगे, ऐसा। ठीक है, वैसे ही कंसल्टिंग की बात करते हैं। कंसल्टिंग में बेसिकली आप देखेंगे तो मोर ऑफ सिमिलर ही है कि आपने जो भी कोई काम करा ड्यूरिंग आर्टिकलशिप, उसमें भी एक सॉर्ट की कंसल्टिंग अपने क्लाइंट को दी है। आपने अगर फाइनेंशियल में क्लाइंट की हेल्प की है, दिस इज सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल कंसल्टिंग टू देम, मींस बेसिकली इंडियाज कंसल्टिंग और वॉट एवर यू से। किसी क्लाइंट को आपने अगर कुछ कॉस्ट सेविंग की एडवाइस दी है, सो दिस इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ कंसल्टिंग। ठीक है, जनरल अगर आपने कुछ काम करा है तो बेसिकली यू हैव टू समराइज दोज पॉइंट्स, रिकॉल दोज पॉइंट्स एंड देन, मतलब थोड़ा, ठीक है, उनको रिकॉल करके, और एक बेसिकली 10-20 पॉइंट आपने लिख दिए, उसमें देख सकते हो आप उसको कैसे सब कैटेगराइज करोगे, कैटेगराइज करोगे, फिर उसके बाद कहाँ से उसको प्लॉट करोगे, ये आपको देखना पड़ेगा। उसमें से कुछ कुछ जो स्टैंडर्ड पॉइंट्स हैं ये आपकी हेल्प कर देंगे, ये पॉइंट्स आपके दिमाग में आ जाएंगे। जैसे ये है स्ट्रैटेजी एडवाइजरी, एडवाइज मिक्स साइज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। अपने भी मान लो मैं इसी क्लाइंट के गया था, I went to a client to do a statutory audit in that particular scenario. Suppose it was doing a particular treatment for a scrap. I went to another similar client for audit. He was doing some different treatment. So this was yielding him some cost savings more than the first client. ठीक है, उससे कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट सेविंग उसको मिल रही थी सेकंड वाले क्लाइंट को, सो आई एडवाइज दैट क्लाइंट टू डू द सिमिलर प्रोसेस विदाउट डिस्क्लोजिंग द सेकंड क्लाइंट्स नेम। कि मैंने उसको क्लाइंट का नेम डिस्क्लोज नहीं करा, बट आई एडवाइस कि आप ये भी कर सकते हो ऑल्टरनेटिवली। सो दिस सेव दैट क्लाइंट 100+ करोड़ और 100+ लैक्स लाइक दैट। ठीक है,
फिर उसके बाद केपीआईज देख सकते हो आप, केपीआईज लेकिन उसमें पढ़ना पड़ेगा कंसल्टिंग में, केपीआईज क्या क्या होते हैं। आप केपीआईज का कहाँ से पढ़ोगे, जो भी आपने क्लाइंट की सेक्टर लिखा है या फिर क्लाइंट का नाम लिखा है, उसको आप चैट जीपीटी पे डाल के केपीआईज सर्च कर सकते हो। ठीक है, जैसे केपीआई आपको सैंपल बता देता हूँ। सपोज आपने एक सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करी, तो केपीआई ऑफ अ सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है, ठीक है, केपीआई आगे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, कि भाई जो परसेंटेज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन क्या है उसका, कि सपोज वो एक क्लिंकर क्लिंकर कितना प्रोड्यूस कर सकता है क्लिंकर से, फिर उसके बाद जो सीमेंट पीपीसी अलग अलग टाइप की जो सीमेंट आती है वो कितना प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, कि एक्चुअल कितनी कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन कर रहा है, इंस्टॉल कैपेसिटी के बदले में एक्चुअल कैपेसिटी कितनी है, ये उसका एक केपीआई हो गया। प्रोडक्शन के सेंस में बात करें तो क्लीन एफिशिएंसी, कुछ कुछ स्पेसिफिक देख सकते हैं। एबिटा एक कॉमन केपीआई है, एबिटा सबके लिए। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के केस में एबिटा मैटर्स अ लॉट, क्योंकि एबिटा के बाद डेप्रिसिएशन एंड फाइनेंस कॉस्ट, दिस इज नॉट डिपेंडिंग ऑन योर प्रोडक्शन। आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हो इस पे आपका डेप्रिसिएशन भी डिपेंड नहीं करता है, ना ही आपका इंटरेस्ट डिपेंड करता है, क्योंकि दिस इज अ फिक्स कॉस्ट विच इज ऑलरेडी बीन इनकर्ड। तो आपका एबिटा मैटर्स अ लॉट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ठीक है, रॉ मटेरियल कॉस्ट एज अ यस। परसेंटेज ऑफ सेल, पावर एंड फ्यूल कॉस्ट, ये सब चीज हो गया। सेल्स के बेस पे बात करें, सेल्स का वॉल्यूम, क्वांटिटी इज अ केपीआई, मार्केट शेयर इज अ केपीआई। फाइनेंशियल्स के टर्म्स में बात करें, रेवेन्यू ग्रोथ, ग्रॉस मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये केपीआई हो गए। तो दीज आर जनरल केपीआईज। तो कुछ कुछ केपीआईज आप याद कर लोगे, कल को कोई पूछता है तो यू कैन टेल, या फिर सामने से ही बता देते हो सर आई हैव एनालाइज्ड दिस केपीआईज। तो ये आप बेसिकली कंसल्टिंग में भी लिख सकते हो, है ना, कि इससे मेरे ये रिजल्ट निकल के आया। आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में भी कुछ कुछ केपीआईज के एनालिसिस लिख सकते हो। स्टैट्यूटरी ऑडिट या क्या बोलते हैं नॉर्मल, मतलब किसी भी सिनेरियो में आप एज ए कंसल्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हो। ठीक है। हेलो। हाँ राज। हाँ सर, आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग कि यस, ये सूटेबल रहेगा क्या बताने के लिए कि बताइए। जैसे हमारे पास एक रियल एस्टेट कंपनी थी, उनके काफ़ी प्रोजेक्ट्स थे। ओके। सो व्हाट वी डिड इज वी एनालाइज्ड कि कितना स्क्वायर फुट कंस्ट्रक्ट करने के लिए उनको अलग अलग प्रोजेक्ट में कितना मटेरियल यूज करना पड़ा। फॉर एग्जांपल ओके। प्रोजेक्ट ए में उन्होंने 1000 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्ट करने के लिए 10 लाख का मटेरियल यूज किया, तो ओके। प्रोजेक्ट बी में 12 लाख का क्यों यूज किया उन्होंने। एंड फाइन। क्योंकि बेसिकली इसमें लैंड और बिल्डिंग का कॉस्ट वेरिएबल था, और लेकिन बाकी जो इनपुट मटेरियल्स थे उनका कॉस्ट तो सेम ही रहना चाहिए ना। तो ऐसे सेम करके स्क्वायर। एक रिपोर्ट प्रेजेंट किया था हमने ठीक है, फाइन। फाइन, पर मतलब इस, पर स्क्वायर फीट। तो इससे आप इसको रिजल्ट भी क्वांटिफाई कर सकते हो लास्ट में, कि वी एनालाइज द टू, basically two projects of the same real estate company, raw material cost, in which for the particular raw material cost in which we identified a deviation of 3 crores in similar square feet and presented the same to management, ऐसा करके। ठीक है, क्वांटिफाई भी कर दोगे इसको, ताकि सीवी में एक मेंशन कर सकते हो और फिर बोल भी सकते हो इसको आप। एक तो मुझे ऐसा इंटरनल ऑडिट में डायरेक्ट टैक्स के लिए सर मुझे जो पूछना था, आपने सर जो पॉइंट्स लिखे थे, आपने जो पॉइंट्स दिखाए ना डायरेक्ट टैक्सेशन के लिए, कि मैंने ये फॉर्म मतलब एक दिखाया था, अपडेट रिटर्न किया मैंने, फिर एएलपी किया। अब मेरा सर ऐसा क्वेश्चन है कि मैंने अगर सपोज ये सब में काम नहीं किया है, या मतलब अगर मैंने सपोज सर ये सेक्शंस में जो 269 एसएस 269 टी, इस पे अगर मैं काम ही नहीं किया हूँ, तो यहाँ पे इसको इधर देख के और वो बैकएंड में पढ़ाई करके जा सकते हैं क्या, मतलब वो ऐसा कुछ हाई लेवल का नहीं पूछेगा ना। नहीं नहीं, डेफिनेटली दीज आर जनरल सेक्शंस यार। 269 एसएसटी में क्या होता है कि आपने कुछ है ना, हाँ सिक्योरिटी। वो सर 2 लाख वाला ट्रांजेक्शन, 20,000 हाँ वाला हाँ हाँ ट्रांजेक्शन, हाँ हाँ। हाँ वो पढ़ा है मैंने। मतलब कुछ कुछ ऐसा सेक्शन जो जैसे 92 इंटरेस्ट वाला है, वो सब पढ़ा है पर किया नहीं है, तो वो डाल सकते क्या, वो बाद में अगर हाँ पूछेंगे तो। डेफिनेटली, डेफिनेटली सी, देखो आपको पता है आपने क्या करा है,
आपने कुछ एक्स काम करा है, आपको पता है, बट अब सीवी में आपने एक्स वाई जेड दो तीनों लिख दिया। अब इंटरव्यूअर को क्या पता चलेगा कि आपने काम करा नहीं करा? वो आपसे क्वेश्चंस पूछेगा। दिस शुड बी योर ओन स्किल कि आप तीनों क्वेश्चंस के आंसर दे पाओगे, तो मतलब आपने तीनों काम करे हैं। ठीक है। तो हाउ यू कैन आंसर? यू हैव टू गो थ्रू द प्रोविजंस एंड लाइक आप गूगल करो, चैट जीपीटी पे सर्च कर लो कि ये सेक्शन क्या है, उस सेक्शन के बाद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दे दो, क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं वो दे दो। ठीक है, 5-10 मिनट में आपका हो जाएगा प्रिपेयर। ये हो गया। अब कोई सीवी स्पेसिफिक आपको कोई डाउट हो तो बताइए। सीवी का मोस्टली अपन ने सब कवर कर लिया, टेम्पलेट देख लिया, डोमेन वाइज सीवीज भी देख लिए, स्टैंडर्ड पॉइंट्स जो लिखने थे वो भी देख लिए, और एक बेसिक ओवरव्यू की भी क्लास हो गई। अब सीवी से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन सर हो तो बताइए। सर कवर पेज का रिक्वायरमेंट रहेगा क्या? हाँ, कवर पेज का बेसिकली क्या होता है, सीवी में आपको कवर पेज नहीं डालना, अलग अलग से कुछ कंपनी स्पेसिफिक पूछती है कि कवर लेटर अपलोड अपलोड कर दो। कवर पेज कवर लेटर मांगती है। ठीक है। तो कवर लेटर का एक जैसे सेपरेट है मेरे पास में, एक सैंपल ये कवर लेटर है। ठीक है, जो सीवी के साथ आप लगा सकते हो। तो इसी में क्या होता है कि एक कवर लेटर में एक फॉर्म ऑफ लेटर है जो आप लिखते हो, जो आपने काम किया था उसी को एक लेटर फॉर्मेट में, कि आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, want to apply for the position of a CA in your organization. ठीक है, what I have done during my academic journey or work experience, I have experience in this area, India's consultancy statutory audit, इसको मैं बोल्ड भी कर सकता हूँ, इस एरिया में मैंने काम करा। ठीक है, फिर ऑर्गेनाइजेशन की थोड़ी सी तारीफ कर दी, मैंने ऑर्गेनाइजेशन में ये काम करे और लिख दिया थोड़ा डिटेल में। व्हाट अट्रैक्ट्स मी, माय अदर स्किल्स, डेडिकेशन, अदर स्किल्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने इतना नहीं लिखा है, यहाँ पे आप पर्टिकुलरली जो अपने स्किल्स वाला सेक्शन है सीवी में, डोमेन वाइज जो सीवीज है उसमें जो स्किल्स है वो भी यहाँ पे प्लॉट डाउन कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद में अपने थैंकफुल नोट पे इसको एंड कर दिया। ठीक है। सर मतलब इन जनरल कवर पेज नहीं भेजना है, बट अगर कंपनी स्पेसिफिकली उनके वेबसाइट पे रहता है अपलोड करने के लिए तभी करना है। हाँ, तभी करना है। इन जनरल क्या करते हैं अपन, जब मेल के थ्रू अप्लाई करते हैं तो कवर लेटर को अपन मेल पे ही थोड़ा कॉपी कर देते हैं। जैसे ड्राफ्ट। मेल पे अपन ने ये यस। सब चीजें लिख दी, जैसे एक सैंपल मेल आपको मैं बताता हूँ। मेल में अपन बॉडी में क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो अपन उसको सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे कि दिस इज माय सीवी फॉर चार्ट एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर द जॉब प्रोफाइल। ठीक है, सीवी जतिन अग्रवाल अंडरस्कोर FP&A, या यहाँ पे कंपनी का नाम भी लिख सकते हो आप, परनोट रिकॉर्ड ऐसा करके। ठीक है, उसके बाद सीवी में मेल में क्या, बॉडी में क्या लिखेंगे? बॉडी में आप डिफरेंट डिफरेंट मतलब किसी भी AI टूल पे जाके सर्च कर सकते हो कि व्हाट टू मेंशन। जैसे आपने सीवी अपलोड करा अपना AI पे, ठीक है, चैट जीपीटी पे सीवी अपलोड करा, और लिख देंगे गिव मी अ मेल which I can basically send to the this company। ठीक है, फॉर बेसिकली फॉर दिस जॉब रोल, तो वो अपने आप आपको मेल बना के दे देगा। फर्स्ट थिंग यू कैन डू। सेकेंडली, एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है जो मैंने बनाया है, इसमें क्या है कि आई होप दिस मेल फाइंड्स वेल बला बला लिख दिया अपन ने, फिर उसके बाद रोल जो आपका अप्लाई करना चाहते हो वो स्पेसिफिक लिख दो, ऑर्गेनाइजेशन लिख दो। ठीक है, रोल और ऑर्गेनाइजेशन आप लिख दोगे यहाँ पे। फिर उसके बाद वैसे ही रोल ऑर्गेनाइजेशन आपने लिखा, उसके बाद आप है ना खुद की तारीफ लिख दोगे थोड़ी बहुत, क्या काम करा वो लिख दोगे, वही बेसिकली कवर लेटर वाला। उसके बाद आपकी स्किल्स लिख दी आपने। ठीक है, मैंने मेरा सीवी अटैच किया है, वेलकम द अपॉर्चुनिटी, आई वेलकम द अपॉर्चुनिटी, और लोकेशन प्रेफरेंस एक डाल दोगे कि आई एम ओपन टू रिलोकेट। सैलरी प्रेफरेंस भी लिखाना चाहो तो लिख दो, बट लोकेशन प्रेफरेंस इज मस्ट। ठीक है, सो दिस इज हाउ योर यू शुड सेंड द मेल्स एंड यू शुड सेंड द कवर लेटर। तो ये भी मैं आपके साथ ग्रुप पे शेयर कर दूंगा कि मेल और कवर लेटर आपको कैसे कवर करना है। सर आप कुछ बता रहे थे कि एटीएस पे अपलोड करने के लिए
रेज्यूमे ठीक है। बनाने के बाद। तो ठीक है। कोई स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म अवेलेबल है क्या जहाँ प्लेटफॉर्म में से आपको, समझ में आएगा? ठीक है, प्लेटफॉर्म पे आपको क्या करना है, सपोज आप कहीं भी गए एक, ठीक है, अब उसके बाद आप सपोज एक कंपनी की वेबसाइट पे गए, कंपनी की वेबसाइट पे, कोई भी वेबसाइट पे गए, जैसे मान लो आप प्रेजेंट एशियन पेंट्स की कोई वेबसाइट पे चले गए, एशियन की वेब एशियन पेंट की वेबसाइट पे करियर सेक्शन में आप लोग गए। अभी होता क्या है, जैसे नौकरी पोर्टल पे आप लोग जब आईडी बनाएंगे अपनी, तो नौकरी पोर्टल पे आईडी बनाने के बाद कुछ पे तो आप डायरेक्टली नौकरी से अप्लाई कर सकते हो, कुछ पे आपको कंपनी की वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना पड़ता है। तो सबसे पहले आप अपनी प्रोफाइल बनाएंगे, ठीक है। प्रोफाइल के बाद आप रेलिवेंट, आपको ये वैकेंसीज दिखा देगा, कीवर्ड आपको किस नाम से सर्च करना है, जैसे मान लो आपको फाइनेंस के नाम से अगर सर्च करना है, आपको पहले प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, फिर जाके आ जाएगा ये। अब फाइनेंस के नाम से कॉर्पोरेट फाइनेंस में मैनेजर फाइनेंस के आपकी एक, ये एक जैसे आपको दिख गई, ठीक है, जॉब वैकेंसी। तो इस पे आप बेसिकली अप्लाई कर सकते हो। मैंने इस पे क्लिक किया, ये मेरे को ले गया इसकी बेसिकली वैकेंसी पे। ये काम क्या है, फाइनेंशियल बजटिंग आपको करना है। अब जॉब पर्पस क्या है इसका वो समझना। फाइनेंशियल बजटिंग आपको करना है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मॉनिटर करने के लिए, मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए वो देनी है। बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपका काम क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस एंड एमआईएस। जॉब रोल का पता चल गया, जो अपन ने डिस्कस किया था अभी कल, कि क्या क्या काम अपन कर सकते हैं। उसमें एक रोल जो एफपीएनडे था, ठीक है। सो दिस इज दैट वर्क, आपको एफपीएनडे का काम करना है। दिखा है एफपीएनडे, लेकिन अंदर जाके अपन फिर भी पढ़ेंगे कि एक्चुअली में काम क्या है। एनुअल फाइनेंशियल प्लान्स बनाने हैं, है ना, किस किस चीज में, इस चीज में प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट आपको देखना है, पीरियडिकल एनालिसिस करना है, एक्सपेंस ओवरहेड्स का, रिपोर्ट्स, कंपटीटिव एनालिसिस की रिपोर्ट बनानी है, एम एंड अपॉर्चुनिटी, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, केपेक्स इवैल्यूएशन आपको करना है, कि आपका वर्क एरिया हो गया, जॉब डिस्क्रिप्शन जो आप बोलते हैं। लोकेशन आपको पता चल गई मुंबई है। अब अप्लाई कैसे करना है, लिंक्डइन से कर सकते हो या फिर अप्लाई इस पे भी जाके कर सकते हो। तो सबसे पहले अपन को आईडी बनानी है, फिर आईडी में एक आपको एक ऑप्शन देगा कि अप्लाई थ्रू सीवी। तो उसमें क्या करना है, आपको सीवी अपना अपलोड करना है। सीवी आप जैसे ही अपलोड करोगे, तो रिस्पेक्टिव एरियाज में, रिस्पेक्टिव एरियाज मतलब आपके एक्सपीरियंस सेक्शन में आपका एक्सपीरियंस आ जाएगा, एजुकेशन सेक्शन में एजुकेशन आ जाएगी सीवी के थ्रू, ठीक है। तो उसमें ओके। फिर आपको जाके कुछ कुछ चेक करके करेक्ट करना है, जो आपका सही नहीं आ रहा तो पता चल जाएगा कि भाई एटीएस में मतलब सही जा रहा है नहीं जा रहा। उस अकॉर्डिंग आप मॉडिफाई कर लेना सीवी, नहीं तो फिर अपलोड करके चेंजेस करके उसको सेव करके फाइल कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। यस। तो इस तरीके से ये काम करेगा। और बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। सर जैसे स्टैट ऑडिट के लिए अगर सीवी बना रहे तो उसमें सर सीक्वेंस मैटर करेगा ना, मतलब स्टैट ऑडिट ऊपर, फिर उसके नीचे इंटरनल जो किए, फिर उसके नीचे जनरल। एक्चुअली देखो होता क्या है, एक जनरल सिनेरियो है कि स्टैट ऑडिट अपन ने मोस्ट मतलब बहुत सारे लोगों ने करी है, ठीक है। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट का पॉइंट ऊपर रखने से फायदा क्या होता है कि जैसे कभी कभी जैसे मैं अगर आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, ऊपर के पॉइंट से आपको अच्छे अच्छे जो मेरे को पॉइंट्स दिखेंगे उससे आपको क्वेश्चन पूछ लूंगा। लेकिन अगर आपको वो ऊपर के पॉइंट्स आते हैं, तो आप उसमें आंसर कर पाएंगे और आप इंटरव्यू क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। तो जनरल सीवी में क्या रखना चाहिए, जो पॉइंट अपन को अच्छे से आता है, अपन अच्छे से जवाब दे सकते हैं, उसको ऊपर रखो। साथ साथ स्टैट्यूटरी ऑडिट और इंडेक्स को ऊपर रखने की पूरी से पूरी कोशिश करो, ठीक है, ऊपर ही रखो उसको। डोमेन स्पेसिफिक सीवी पे जाते हैं, तो डोमेन स्पेसिफिक सीवी पे आप फर्स्ट पॉइंट उस डोमेन का रख सकते हो जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो। सेकंड पॉइंट पे आप स्टैट्यूटरी ऑडिट जो एवरग्रीन प्रोफाइल है वो रख सकते हो। चला अपन मतलब क्लास किस फॉर्म में लेके जा रहे हैं वो बताता हूँ। सबसे पहले अपन को डोमेन्स का पता चला, ठीक है। बेसिकली पहले तो आपने समझा कि अपन करने क्या जा रहे हैं जॉब के लिए, ठीक है। डोमेन्स के बाद अपन ने देखा सबसे पहला सीवी बनाना जरूरी है। उसके बाद अपन जाएंगे कि भाई सीवी के साथ साथ सीवी में अपन ने नौकरी पोर्टल, सॉरी अपन ने लिंक्डइन का लिंक डाला है, तो लिंक्डइन अपन अपडेट करेंगे। उसके बाद अपन जॉब एप्लीकेशन देखेंगे। एप्लीकेशन किस किस, बहुत सारे पोर्टल्स हैं, नौकरी पोर्टल, आई एम जॉब पोर्टल, फास्ट करियर्स पोर्टल, ठीक है, अलग अलग कंपनी की वेबसाइट्स पे बनेंगे। एप्लीकेशन के बाद आता है अपने पास
सीवी का शॉर्ट लिस्टिंग। तो शॉर्ट लिस्टिंग का अपन ने तरीका देख लिया कैसे सीवी शॉर्ट लिस्ट होगा। फिर आता है एचआर का प्री स्क्रीनिंग कॉल। एचआर का कॉल आएगा तो उस पे उसके लिए क्या प्रिपेयर करना है वो देखेंगे। उसके बाद अपने पास आता है टेक्निकल राउंड ऑफ इंटरव्यू, उसके लिए क्वेश्चंस देखेंगे। फिर आता है एचआर राउंड ऑफ इंटरव्यू। फिर आपका आता है ऑफर लेटर, सैलरी। इसके बीच बीच में आपका आईसीआई कैंपस भी आएगा। साथ साथ आपको कुछ कुछ और स्किल्स देखना है। एआई के स्किल्स हो गए, एक्सेल भी आपको आनी चाहिए, आपको है ना मॉक इंटरव्यूज, मॉक जीडीज, ये सब चीजें। या फिर आप साइकोमेट्रिक टेस्ट के साथ साथ भी कवर करने। तो ये एक बेसिक फ्रेमवर्क है। तो वी आर ऑन दिस स्टेज ओनली, अपन ने सीवी वाले स्टेज पे हैं अभी। ठीक है, तो कल अपन कवर करेंगे बेसिकली लिंक्डइन का अपडेशन, और फिर उसके बाद अपन जॉब एप्लीकेशंस पे जाएंगे।